Assalamu alaikum everyone. I hope you're all getting the message over there. And inshallah, today I will definitely see how many questions you have. Yesterday there was a drop, somewhere it was dropped, the line was dropped, and I couldn't answer your questions. And if you have some question, you can write them down right now, and I will be answering at the end. And some of the people, again, they are saying if they have their first class today, by the end of this class, I will show you 2 phone numbers and you will contact them, right? I'll guide you. So this is all about everything I always say in every class, right? Okay, so we are doing letter writing and we are gradually moving towards learning how to write good letters. And that's why I told you, if we are going to be doing the same thing, it's getting very monotonous. So I would say that I'm not going to make it very monotonous in a way that the next week is we continue doing the same. But definitely, I would require on your part that you are not only doing some of the homework I will give you, and on Monday, inshallah, I will share with you the solution of the homework as I always do, because I don't have any other option except for you evaluate yourself. You assess yourself. If you have written a complete letter, how could you be understanding that whether this is correct or not? You will compare it with the proposed solution. So this is how you will do. Secondly, your format of the letter which you have learned from me, it should be perfect. I think there is no doubt about that you have a complete guidance on it, because I have given you not only the solutions, but you have done yourself. Yesterday, I shared with you the solutions as well. 1 or 2 students were surprised to see that the very first day when I taught you the format, they were asking that why aren't you discussing the body of the letter? I told them definitely we are moving gradually. If I do it everything in the first day, then you won't be getting it. That's why I taught you how to write what? The format. आपने format लिखना सीखा, then next day I told you this, gave you the solution. आपने उसका solution निकाला. अभी जो आपने सीखा है format बनाना, वो बिल्कुल latest style के जो अभी letters आ रहे हैं उनके ऊपर है. तो अभी आपको बहुत सारे mix किस्म के भी मैं करवाती जाऊंगी. And I told you yesterday and the day before yesterday, whatever the scenario is given, you are going to put yourself in that situation. Just like कि आप किसी मूवी में आपको काम दिया जाए, आपका विलन का रोल है तो आप विलन जैसी शक्ल बना लेंगे. अगर हीरो का रोल है तो हीरो जैसी बना लोगे, ऐसे ही ना. तो दिस इज व्हाट कि आपने अपने रोल के मुताबिक जो आपको दिया जाएगा खत में, उसके मुताबिक अपनी अपनी लैंग्वेज को एडजस्ट करना है. ठीक है. आज मैं एक और क्लास को पढ़ाई थी, मॉर्निंग क्लास थी, उनको मैं रेट्रिक का कॉन्सेप्ट दे रही थी. रेट्रिक जो है उसका कॉन्सेप्ट एरिस्टोटल ने दिया है. उसने कहा है कि रिटोरिकल स्पीचेस जिसे आप कहते हो, जो रिटोरिकल स्पीचेस या रिटोरिकल वे होता है बोलने का, उसमें ये होता है कि यू आर गोइंग टू पुट एवरी टाइप ऑफ परसुएशन इन योर words, expression, style, and whatever you do, like you are making people understand. जो तुम कहना चाह रहे हो उनको कम्युनिकेट करो, तो इसे बेसिक्स ऑफ रेट्रिक कहते हैं. ठीक है, जो आर्ट ऑफ परसुएशन है. रेट्रिक मीन आर्ट ऑफ परसुएशन. तो ये मैं उनको सिखा रही थी. ये बात हर जगह है. आप घर में अगर किसी को कन्विंस करना चाहते हो तो यू शुड हैव सम गुड आर्ग्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए. आप दलील दें तभी लोग समझेंगे. और अगर आपके पास दलील नहीं है तो छोटा बच्चा नहीं मानेगा. अगर कल को आपने उससे कहा था ये काम कर दो और तुम्हें चॉकलेट दूंगा, और अगर या दूंगी, आपने उसको सस्ती से अगर चॉकलेट ला दी, उसके स्टैंडर्ड पे नहीं मीट कर रही, तो कल आपका काम नहीं करेगा. वो कहेगा उस सस्ती सी चॉकलेट के लिए आई वांट डू. सो इट मीन्स दैट यू आर गोइंग टू बी वेरी कन्विंसिंग. आपने उसे कन्विंस करना होता है, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, बॉस है, जूनियर है. ठीक है. ये सारी जो हम एफर्ट कर रहे हैं वो आपको इस चीज के लिए प्रिपेयर करने के लिए कर रहे हैं. ठीक है. आपके कोर्स में प्रेजेंटेशंस भी हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊंगी कि कैसे अगर मैं आपके साथ हूँ. आई डोंट नो कि अब कहते हैं ना कि वो एक मुहावरा है कि ऊंट किस करवट बैठता है. अभी ऊंट जो है वो हिलना शुरू हुआ है. आई डोंट नो कहाँ बैठता है अभी. मुझे इवन wherever आई एम टीचिंग इट्स नॉट क्लियर. मुझे अभी तक नहीं पता. वो दे आर वर्किंग ऑन इट, क्योंकि बहुत से लोगों ने ऑप्ट किया कि नहीं हम ऑनलाइन ही लेते रहेंगे. कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं हम फिजिकल लेंगे. ठीक है. तो उनमें जो लोग कंफर्टेबल जिस तरह हैं उन्होंने उस तरह से किया, क्योंकि उसकी बड़ी वजह ये भी है कुछ लोगों के कोर्सेज बड़े देर से शुरू हुए हुए और आप समझ लें कि हम कंक्लूड करने पे आ गए हैं. व्हाई शुड दे मूव टू अनदर सिटी इफ दे आर लिविंग समवेयर एल्स. जैसे कोई बंदा दूर रह रहा है, वो क्यों लाहौर, कराची, इस्लामाबाद मूव करेगा
अगर वो उसे यानी एक हॉस्टल में रहना है, उसका एक्सपेंस है और वेरिएबल्स हैं, वो घर बैठ के कहते हैं नहीं नहीं आई एम लर्निंग इट, आई विल बी डूइंग, मैं प्रिपेयर कर चुका हूँ। कुछ लोगों ने ऐसा किया और कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं आई वी वांट टू हैव अ फिजिकल क्लासेस। लोग वैसे भी सिक हो गए ना, दे आर स्टेइंग बैक होम फॉर द लास्ट 6 months एंड दे वांट टू गेट आउट ऑफ देयर होम्स। वैसे में हमारी कौम को रोका तो नहीं गया। आपने देखा होगा छोटी ईद पे जब उनको कहा था कि निकल आओ, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, आपने देखा होगा तस्वीरें व्हाट्सएप पे कि सड़कों पे लोग ऐसे आ गए थे कि जैसे कि पता नहीं क्या होने लगा है, समझ नहीं आ रही थी, ऐसे लग रहा है सैलाब है लोगों का। तो ये जो है हमारा वो सारा है। अब मैंने बातें जो आपसे कर ली, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, अभी तो मैं आपको जो कल जहां से मैंने सिलसिला छोड़ा था वहीं से मैं जोड़ूंगी। मैं सिर्फ एक थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना जरूरी होता है, पता है आपको क्यों? ताकि आपकी मेमोरी शार्प हो जाए। अगर आपका माइंड एक ट्रैक पे चलता रहेगा ना, तो आपके सारे जो सिस्टम है वो स्लो हो जाएंगे और कोई इर्द गिर्द से कहते हैं ना कि वो कोई बात नहीं आएगी। जैसे वो है इकबाल का शेर है, कभी कभार मैं गलत भी पढ़ देती हूँ शेर, लेकिन इकबाल का शेर है ना, खुदा तुझे तूफान से आशना कर दे कि तेरे पता नहीं कि मौजों में इज़्तिराब नहीं, कुछ इस तरह करके है। यस, यानी लाइक तुम तूफान को मीट करो बिकॉज देर इज नो एनी मूवमेंट इन वाटर राइट नाउ, ताकि तुम भागो। तो हमें थोड़ा सा इस तरह की चीजें भी, एक झटका जो है हमें चाहिए होता है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्ट आपको कर रही हूँ। डिस्ट्रैक्ट ये कर रही हूँ कि मैसेजेस जितने भी हम करते हैं ये सारा कुछ आपको नोट्स में मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। लेकिन आई डोंट प्रॉमिस इस वीक में आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, आई एम वर्किंग ऑन इट, क्योंकि बहुत काम है। तो मैं आपके नोट्स तैयार करके अगले वीक में आपसे शेयर करूंगी। और अगले वीक में आपका टॉपिक क्या है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। हम ब्रेक देंगे, लेकिन आप लेटर की प्रैक्टिस करते रहोगे। मैं इस तरह से आपको गाइड आज कर देती हूँ, आपको चीजें आपके साथ शेयर करूंगी कि आप फारिग नहीं है, मेरी तरफ से आप फारिग नहीं बैठे, यू आर वर्किंग, ठीक है। आप साथ साथ काम कर रहे हो। आपका जो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे को ऑफ ले लो, आराम करो, रिलैक्स करो, कोई मूवी देखो, कोई जो मर्जी आप करना चाहते हो, पार्टी करो। तो ये सारा कुछ तुम करो, लेकिन आपने मंडे को जब आते हो तो वी स्टार्ट विद न्यू टॉपिक। उसी दौरान ही मैं आपको मंडे तक इंशाल्लाह, आई होप इंशाल्लाह आई डू, मैं आपके नोट्स भी शेयर कर दूंगी जो आपको थ्योरी के तौर पे पढ़ने होंगे। बाकी जो नोट्स हैं, लेटर कैसे लिखने हैं, वो आपको साथ साथ मिल भी रहे हैं और वो आपको मजीद मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम आपको डिस्ट्रैक्ट किया है, तो आपको बताना चाह रही हूँ कि आपके पास अगर मैसेजेस को हम क्लासिफाई करें जनरली, जितने भी बिजनेस मैसेजेस हैं, तो आपके पास क्या आएगा? गौर जरा कीजिएगा, आपके पास है यहाँ पर 3 टाइप्स आ गए। लेफ्ट साइड देखिए, लेफ्ट साइड पे लिखा मैसेज टाइप। या तो रूटीन मैसेजेस होते हैं, या रूटीन मैसेजेस जो होते हैं उसको हम यानी कोई स्पेशल इशू नहीं होता। आप नॉन रूटीन मैसेजेस होते हैं जिसमें आपको कोई स्पेशल बात करनी होती है। एक रूटीन में मैसेज आता है, या कोई मैसेज गुड न्यूज है, अच्छी न्यूज आपको दी जा रही है कि जी आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी, आपको हम हायर कर रहे हैं जॉब पर। या गुडविल, यानी आपको गुडविल के विशेष दे रहे हैं लोगों को, किसी कोई रिटायर्ड हुआ है उसकी अप्रिसिएशन, कि कोई प्रमोट हुआ है उसको अप्रिशिएट करो। तो इस तरह के गुडविल मैसेजेस बिजनेस के अंदर होते हैं। या कोई कंपनी एक्सपैंड हुई है, आपने कोई फैक्ट्री बड़ी लगा ली है, तो आप अपने जो भी हैं लोग उनको आप कर रहे होते हो, दिस इज हाउ यू डू। जब आप मैसेज दे रहे हो, आम मैसेज है, अच्छी खबर है, गुडविल यानी उसके लिए अपनी अपनी रेपुटेशन बढ़ा रहे हो, यानी गुडविल मैसेजेस हैं, यानी रेपुटेशन वगैरह बढ़ा रहे हो। तो क्या करते हो? आपने ऑडियंस उस वक्त प्लीज्ड है, खुश है या न्यूट्रल है, क्योंकि आपने ऑडियंस को देखना ना। उसके लिए आपने जो मेथड अडॉप्ट करना है उसे कहते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट बात बता दो, घुमाओ फिराओ नहीं, सीधी बात कर दो, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद अगर मैसेज है बैड न्यूज कि जी हम आपका लोन एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जी हम आपकी जो है कंसाइनमेंट टूटी है, हम उसको नहीं दे सकते, कंपनसेट नहीं करेंगे, ठीक है। आपने रिम्बर्स के लिए कहा है कि जी आप हमारे पैसे वापस कर दें, तो आप नहीं कर रहे। उससे ऑडियंस डिसप्लीज्ड है, हैप्पी नहीं, अनहैप्पी, नॉट प्लीज, नॉट खुश, अनहैप्पी। अब वो सुनकर अनहैप्पी जब होगा, तो आपकी अप्रोच इनडायरेक्ट होनी चाहिए। आप एकदम से उसके सर के ऊपर हैमर मत मारे, यू मेक इट सॉफ्ट। और मैंने पहले भी ये लफ्ज यूज किया था, सॉफ्ट के लिए आपने बफर का इस्तेमाल करना है,
आज मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ ये बफर क्या होता है। आपने बफर का इस्तेमाल करना है। बफर इज अ न्यूट्रल और पॉजिटिव स्टेटमेंट। आपने उससे उसका स्टार्ट करना है, तो जिससे वो दुखी नहीं होगा। बाद में खबर बेशक आप दे दो, लेकिन पहले ही तौर पर उसको एकदम से उसका रिएक्शन जो है ऐसा ना हो। तो हमने इनडायरेक्ट अप्रोच इस्तेमाल की, पहले उसको खबर नहीं दी। उसके बाद एक और मैसेज होता है परसुएसिव। मैंने आपको बहुत डिटेल में बताए थे। सेल्स लेटर्स, एडवर्टाइजमेंट्स, आपका सीवी, आपकी जॉब एप्लीकेशन, आपका जो लोगों को ब्रोशर भेजते हो, कैटलॉग भेजते हो, इट्स ऑल परसुएसिव। आप कन्विंस कर रहे हो लोगों को, ठीक है। आप जब उनको कन्विंस कर रहे होते हो तो लोग आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। मुझे तुम एक मैं गाड़ी में जा रही हूँ तो मेरी वाइपर जो गाड़ी का बाहर है उसके अंदर एक तुम लगा के चले जाता कोई एड, तो डू यू थिंक आई एम इंटरेस्टेड? नॉट एट ऑल। कुछ ऐसा करो कि मैं उसे पढूं। तो आपका जो मैसेज, लोग हैं अनइंटरेस्टेड हैं या अनविलिंग है, उनको आपने पुश करना है काम करने पर। और मैंने इसके लिए आपको आइडा प्लान भी बताया था। और इनडायरेक्ट, अब जो परसुएसिव अप्रोच होती है ना, वो भी डायरेक्ट नहीं होती, इनडायरेक्ट होती है। पहले आप उसकी को कहानी बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक लेटर है आपकी एक बुक में जो आपको रिकमेंडेड बुक है उसमें से लेटर लिखा हुआ है कि वो बहुत हाई फाई स्टैंडर्ड के लेटर हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन वो वैसे भी वो ऐसे लेटर्स हैं जो हमारे मुल्क में जरा कम ही रिवाज है, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से लिखना या बहुत ज्यादा लिखना। उसमें उसने एक परसुएसिव लेटर लिखा हुआ है और उसने स्टार्ट किया है एक क्वेश्चन से। उसने कहा है कि डू यू नो एवरी फोर्थ कार इज स्टोलन, डू यू वांट टू हैव योर्स टू? तो क्या तुम्हें पता है हर चौथी गाड़ी, चार में से चार गाड़ियां खड़ी हो तो एक गाड़ी चोरी हो जाती है, तो क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी भी हो जाए? तो उस पर क्या आगे उसने पता क्या किया हुआ है, आपको कन्विंसिंग लेटर लिखा है कि मेरे पास जो अलार्म है ना, जो आपने उस पे सेट करना है, जो आप लगाते हैं अपनी गाड़ियों में, आप वो वाला अलार्म जो है वो बहुत अच्छा है, उसे खरीद लें, उसको लगवा लें, उसकी बात करता है। और इस तरह के अलार्म अपने आप घरों में भी लगा सकते हैं और इस तरह की बातें हमारे पास वो भी मौजूद है। तो उसने ये कहा। तो आप किसी न किसी तरीके से लोगों को कन्विंस करते हैं, आप उनको परसुएट करते हैं। आपका क्या तरीका है, आप किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट अप्रोच की बात की मैंने। इसके बाद एक और चीज आपको दिखाऊंगी कि ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट में आपने रेड वाला एरिया सिर्फ पढ़े। हम ऑर्गेनाइजेशनल प्लान यूज करेंगे, यानी ऑर्गेनाइज करने का प्लान। मैंने अपने खत को कैसे ऑर्गेनाइज करना है उसका प्लान हम यूज करेंगे। उसके लिए मेरे पास दो प्लान है। या तो डायरेक्ट प्लान है जिसे डायरेक्ट अप्रोच भी कहेंगे और डिडक्टिव अप्रोच भी कहेंगे। इसको आपने याद रखना है, मैं नोट्स में डाल दूंगी। ये आपने याद रखना है, आपको एमसीक्यूज इसमें बहुत आते हैं। तो डायरेक्ट या डिडक्टिव अप्रोच वो आपकी इसमें है, तो उसमें आपने डायरेक्ट बात करनी है क्योंकि आपका ऑडियंस रिसेप्टिव है, वो सुनने के मूड में है, ठीक है। और इनडायरेक्ट या इंडक्टिव अप्रोच तब इस्तेमाल करनी है जब तुम्हारा ऑडियंस क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है तुम्हारे मैसेज को। तो इनडायरेक्ट अप्रोच इसे कहते हैं, इनडायरेक्ट प्लान कहते हैं, इंडक्टिव अप्रोच कह लो, इंडक्टिव प्लान कह लो। आपने दो लफ्ज याद करने हैं, दोनों ही लफ्ज डी से शुरू हो रहे हैं, डायरेक्ट एंड डिडक्टिव। और दोनों ही लफ्ज आई से शुरू हो रहे हैं, इनडायरेक्ट, इंडक्टिव। इनमें से कुछ भी आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो अब आपने ये याद कर लेना है कि इनडायरेक्ट अप्रोच क्या है और डायरेक्ट अप्रोच क्या है। इनडायरेक्ट में आपने बात सीधी पहले नहीं करनी और डायरेक्ट में करनी है। उसके लिए मैं आपको एक पहले बता दूं, वैसे तो गुड न्यूज बैड न्यूज दोनों में डायरेक्ट इंडायरेक्ट आपकी मर्जी है। अगर आपने गुड न्यूज भी देनी है तो आप पहले थोड़ी सी कहानी फेंकें, क्यूरोसिटी उसकी बढ़ाएं, फिर उसको बताएं तो वो खुश हो जाएगा। आपने कहा नहीं जी मेरा स्टाइल ऐसा है, मैंने अच्छी खबर भी देनी है तो मैं इनडायरेक्ट दूंगा, दिस इज योर चॉइस। आप पे कोई कंपल्शन नहीं है, सिर्फ आपको तरीका बता दिया गया कि जैसे फॉर इंस्टेंस सुबह तुमने नाश्ता करना है, ठीक है। एक आपके पास, आप जाते हो, आप जाके चेक करते हो वहां पे कॉम्बिनेशन पड़ा है, किसी अगर होटल में आप ठहरे हुए हो, वहां पे लस्सी भी पड़ी है, ठीक है, कॉफी भी पड़ी है, चाय भी पड़ी है, ग्रीन टी भी पड़ी है। तुम्हारी मर्जी है, कोई भी ले लो, कोई कॉम्बिनेशन उठा लो जिसके तुम यूज टू हो। बिल्कुल ऐसे ही अगर मुझे अपने लफ्जों पे कंट्रोल है, आई हैव कंट्रोल ऑन माई स्टाइल, तो मैं कोई भी स्टाइल ले लूं, मेरी मर्जी है। लेकिन नॉलेज पड़ा हुआ है। अगर मेरे पास बैड न्यूज है, मैं नेगेटिव मैसेज है, मैं उसको हैंडल कर रही हूँ, उसके दो तरीके हैं। या तो बैड न्यूज शुरू में दे दूं, उसके बाद उसकी रीजन दूं,
और फिर पॉजिटिव क्लोजिंग तो हमेशा करनी है, ठीक है। इसके ऊपर मैं आपको नोट्स जो दूंगी वो याद करना, अभी सिर्फ आइडिया ले लो। डायरेक्ट अगर अप्रोच है तो मैंने बैड न्यूज, अगर वो अच्छी न्यूज है तो ऐसे ही इसको अच्छी न्यूज पे कर लो, गुड न्यूज दी और उसके आगे एक्सप्लेनेशन की और एंड कर दिया, ठीक हो गया ना। तो दिस इज हाउ यू विल बी लाइक राइटिंग लेटर। दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट अप्रोच, जो कि बहुत ज्यादा पेपर में आती है, जिसे इंडक्टिव अप्रोच या इंडक्टिव प्लान कहते हैं। वो स्टार्ट होती है बफर से। बफर एक न्यूट्रल स्टेटमेंट है जिससे किसी को दुख नहीं पहुंचता। तो ये आज मैं आपको इसको सिखाऊंगी आपको। फिर रीजन दो कि हम आपकी चीजें नहीं कर सकते थे, उसके लिए आपने पहले कहा है, कुछ बताया, फिर रीजन दी, फिर बैड न्यूज दी, फिर क्लोज किया। कैसे प्रैक्टिकली करना मैं आपको भी करके दिखाती हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे इनडायरेक्ट प्लान के कुछ स्टेप्स मैंने लिखे हैं। बफर है, स्टार्ट योर मैसेज विद अ पॉजिटिव स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग द सिचुएशन। स्टेप 2, एक्सप्लेन द क्रिटिसिज्म एडवर्स ओपिनियन, या जो भी आपने उसकी रीजन देनी है। यूज कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट, कोऑपरेटिव टोन आप यूज करेंगे। इसके बाद है स्टेट द क्रिटिसिज्म या ओपिनियन को करो, अवॉइड ब्लेमिंग, ब्लेम नहीं करना किसी को। एंड उसके बाद है पॉजिटिव फ्रेजेस इस्तेमाल करो एंड स्टेटफुली हर चीज को बताओ और ऑल्टरनेटिव बताओ, फ्रेंडली तरीके से खत्म करो कि क्या उनकी हेल्प कर सकते हो। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एक ओल्ड कपल एक जगह से एक काउच खरीदता है, सोफा खरीदता है, और वो घर जाके देखता है कि उस पर एक दाग है बैक पर और उसका एक क्या टूटा हुआ है, स्प्रिंग टूटा हुआ है। तो अब वो क्या करता है, ये आपके किसी बहुत पास पेपर्स में, बहुत कुछ 4 5 6 साल पुरानी बात है, आपके पेपर्स में, आईसीएमए के पेपर्स में है ये। तो उसमें लिखा है कि आपको खत आया है, अब आप क्या करेंगे, आपने उसको जवाब देना है। अब आप क्या करें, बफर चूज करेंगे, शुक्रिया आपका खरीदने का, और फिर उसको समझाएं कि आपने एज इस जो है यानी बी पेयर वाली विंडो से खरीदा था, और फिर समझाएं कि बी पेयर से जब आप खरीदते हो तो डेफिनेटली इतना तो कोई ना कोई मसला तो होगा चीजों में, और आप इतना ब्रांड महंगा खरीद रहे हो, इतने सस्ते में खरीद रहे हो। तो फिर उसको वो कहता है कि अच्छा ठीक है, हम आपको क्या करेंगे, हम आपको इसके ऑल्टरनेटिव जो है आपको ये बताते हैं कि हमारा एक पर्सन आएगा, वो आपका ये फिक्स कर देगा और आपसे कम चार्ज करेगा। तो ये हम तरीका बताएंगे। तो ये बातें जो है सिर्फ करने वाली नहीं है, हमने प्रैक्टिकली इसको करना भी है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने अभी इस वक्त क्या देखना है। सबसे पहले आप जरा देखिए, आपको मैं साथ ही चलते चलते, चूंकि मैंने आपको डिस्ट्रैक्ट किया है ना कल वाले काम से, अभी मैं आपको वापस लेके जाती हूँ। देखो ये बहुत ही छोटा सा एक मैसेज है, ये आपके पास जो आईकेप की बुक है उसके अंदर ये मौजूद है, ठीक है, ये वहां से मैं दिखा रही हूँ। गौर से सुनिए, पीडीएफ आपके पास भी है, पीडीएफ मेरे पास भी है। इसमें लिखा हुआ है जी, जो आपको राइट साइड पे स्पीच मार्क्स नजर आ रही है ना, स्पीच मार्क समझते हो ना, जो स्पीच बबल्स कार्टून वाले, कार्टून के साथ लगे होते हैं, तो आपके ये बता रही हैं कि हमने क्या किया। सबसे पहले आपने बफर दिया, बफर ये था, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू कमेंट ऑन योर ड्राफ्ट प्रपोजल। अब पता क्या, एक आपका जूनियर है, ठीक है, या आपका कॉलीग है, उसने कहा कि जी मैंने प्रपोजल तैयार करी है, बिजनेस प्रपोजल, आप जरा एक दफा चेक कर लो, उसका ड्राफ्ट है, पहला ड्राफ्ट है या दूसरा ड्राफ्ट है। जब हम आप लिखते हैं ना तो हम उसको ठीक करते हैं, प्रूफ रीड करते हैं, और प्रूफ रीड करके उसका फर्स्ट ड्राफ्ट, दूसरा ड्राफ्ट बनाते हैं, फिर फाइनल ड्राफ्ट बनाते हैं। तो वो बिफोर वो सबमिट कराता, उसने अपने किसी कॉलीग को या सीनियर को कहा कि ये प्लीज पढ़ दे। अब सिचुएशन ये है, अब उसने देखा तो उसने कहा थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू कमेंट ऑन योर ड्राफ्ट प्रपोजल। देखो अगर मैं आगे खबर बुरी लिखूं कि तुम्हारा प्रपोजल नहीं अच्छा था, मैंने पढ़ा है, या तुम्हारा प्रपोजल बहुत अच्छा है, मैंने पढ़ा है, दोनों सूरतों में ये जो स्टेटमेंट आ रही है, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू कमेंट ऑन, ये बिल्कुल ट्रू है। आपको बिल्कुल दुख नहीं होगा अगर मैं कोई नेगेटिव भी आगे बताऊंगी या मैं पॉजिटिव भी बताती हूँ। दोनों केसेस में आपके पास ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है विच इज न्यूट्रल स्टेटमेंट, और यू कैन से पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये यहाँ पर चलेगी। तो बफर आपने दे दिया, बफर का लफ्सी मतलब होता है कुशन, ठीक है, कि किसी सख्त चीज को सॉफ्ट करना। आगे लिखता है आई फाउंड द प्रपोजल रीडेबल, अभी भी कह रहा है कि हाँ पढ़ने के काबिल है, एंड इंफॉर्मेटिव, और इसमें बहुत इंफॉर्मेशन है। हाउ एवर, यहां से ट्रेजेडी शुरू हो गई। हाउ एवर, ताहम, देर आर अ नंबर ऑफ प्लेसेस वेयर आई थिंक योर आर्ग्यूमेंट वुड बी मोर परसुएसिव इफ द पैराग्राफ्स वर शॉर्टर। तुम्हारे आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छे होते अगर तुमने जरा पैराग्राफ को छोटा किया होता, तुमने पैराग्राफ बड़े बड़े लिख दिए।
देखो उसने ये नहीं कहा कि तुमने पैराग्राफ बहुत बड़े बड़े लिखे हैं, ये ठीक नहीं होते, इसको ठीक करो, ये नहीं कहा उसने। उसने कहा तुम्हारे आर्ग्यूमेंट बड़े अच्छे होते अगर तुम थोड़ा सा पैराग्राफ को और छोटा करिए। इसके बाद आई हैव इंडिकेटेड दीज इन द टेक्स्ट, मैंने टेक्स्ट में साइड पे लिख दिए हैं। एंड वेयर पॉसिबल शोन ऑल्टरनेटिव्स, और जहां पॉसिबल है मैंने उसका बदल लिखकर दिखाया है। विच विल हेल्प देम विद फाइनलाइजिंग द प्रपोजल, जो तुम्हें हेल्प करेगा कि तुम प्रपोजल अपने को यानी बिजनेस प्रपोजल को आप ठीक कर लोगे। इसके बाद है योर प्रपोजल रिप्रेजेंट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव समरी ऑफ योर बिजनेस मॉडल, आपने जो काम करना है उसको बहुत अच्छा प्रेजेंट कर रही है। एंड आई एम श्योर दैट द बैंक विल फाइंड इट मोस्ट यूजफुल, आपने शायद बैंक को जमा करवाना है तो बैंक विल फाइंड इट व्हाटएवर, जहां भी कराना है, तो आपको अभी भी पॉजिटिव एंड कर दिया। तो आपने देखा साइड पे बबल, बफर, एक्सप्लेन एंड स्टेट क्रिटिसिज्म, ऑल्टरनेटिव दो, हाउएवर से शुरू हो गया क्रिटिसिज्म, ऑल्टरनेटिव दो और पॉजिटिव एंड करो। इस तरह से तुम डील करते हो किससे, जो आपके मैसेजेस होते हैं। इसके बाद जी हम यहाँ से आपको एक नया शेयर आपका करते हैं और वहां पर जाते हैं आपका जो जी, अब आपकी कनेक्शन हम जोड़ रहे हैं कल वाले काम से, ठीक है। आपने क्लास में, ये मैंने आपको कल जो होमवर्क भेजा था उसमें ये सब था, ठीक है, सही है ना, बात समझ में आ रही है। आपने मिसबा रहीम डायरेक्टर मार्केटिंग अद्वियात लिमिटेड पे काम किया था कल, जिसमें डॉक्टर साहब को आपने लिखा था, ये मैंने आपको सारा भेजा था, आपने ये सारा पढ़ा। आपका होमवर्क का एक पार्ट था, इसको ध्यान से पढ़ो। और होमवर्क का दूसरा पार्ट ये था कि इसके बाद आपका जो है क्या होगा, आपका एक और सिनेरियो दिया, सिनेरियो 2, जिसके ऊपर आपने क्या करना था, पहले आपने खुद लिखना था। आप में से आई अप्रिशिएट एंड सैल्यूट दोज हु हैव डेफिनेटली फॉलोड माय इंस्ट्रक्शंस। आपने पहले इसको पढ़ा, पढ़ने के बाद कंपेयर किया और देखा कि मेरा फॉर्मेट ठीक है, और फिर उसको आपने क्या किया था, क्योंकि फॉर्मेट जो है वो मैंने सिर्फ एक पे लिखा था, बाकी मैंने बॉडी ऑफ द लेटर आपको दिए थे। अब ये कहाँ से ये हम सोल्यूशन बना लेते हैं, हम सोल्यूशन इसलिए आपको बनाते हैं कि आप डिफरेंट लोग हैं, आप डिफरेंट तरीके से अप्रोच करेंगे, लेकिन आप सबका तरीका एक जैसा होगा। अच्छा, इसमें एक चीज मैंने जो ऐड की थी, ये फैक्स था। ये फैक्स जो है वो कैपिटल एफ होना चाहिए था, लेकिन आपको फैक्स नहीं लगाना, आपको नहीं लगाना। आपने फोन करना है, आपने ईमेल करनी है, आपने वेबसाइट करनी है, प्लीज ये फैक्स तुमने नहीं करनी। अगर मैंने वहां पे आपको मिली है कल, फॉरगेट इट। तो इतना तो हम सोच सकते हैं कि आजकल होती नहीं एक्चुअली, हम उसकी जगह ईमेल ही करेंगे, ठीक हो गया। जैसे आपको पहले दिन सिखाया था बस उसको फॉलो करें आप, इसके अलावा नहीं, बस खत्म होगी बात, उस पर फुल स्टॉप लग चुका है। बाकी अगर आपको जो भी मिलेगा ना, आपने इग्नोर कर देना, आपने कहना नहीं जी मैंने तो जो सीखा मैंने वही करना है। इसके बाद आपने देखा यहाँ पर जो चीजें 23A सदरन कमर्शियल जोन नहीं दिया था कुछ उसने, मैंने अपनी मर्जी की। सम एरिया सम सिटी, आगे मैंने पोस्टल कोड हेडिंग नहीं दी, मैंने पोस्टल कोड लगा दिया। मेरी मर्जी है मैं लगाऊं या मैं, मेरी मर्जी है जिस तरह आपको मैंने सिखाया वैसे कर लो, बिल्कुल वैसे कर लो। उसने हमें कोई स्ट्रीट एड्रेस नहीं दिया था। और बाकी फोन लिखना, ईमेल लिखना वो हमने सीख लिया है, वेबसाइट लिखना हमें आता है, ना बताओ हमें आता है। हमने डेट लिखनी भी सीखी है और हमने रेफरेंस लिखना भी सीख लिया है। कुछ भी लिख दो, जैसे MK हाइफन है 2D/XLM लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद मिस्टर नेम, क्योंकि नाम नहीं बताया लेकिन ये बताया है कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। जो बताया है प्लीज ध्यान करना, जो बताया है वो रिटेन करना तुम्हारा फर्ज है, और जो नहीं बताया वो आपने एज्यूम करना है। तो आपने बाकी सारा एज्यूम कर लिया। 19 किलोमीटर मेन हाईवे, आमतौर पे जो बड़ी बड़ी रोड होती है ना, ये हाईवेज होते हैं, उसके साथ हमेशा इतने किलोमीटर लिखा होता है। ये भी एक एज्यूम्ड है, नहीं लगाना आपकी मर्जी है, कुछ भी लगा दो, ठीक है, जो आपको सिखाया वही कर लो। आप उसका वो लिखा है नीचे ये लिख लो। और अगर आप कुछ कहेंगे कि मैं आपको कुछ एज्यूम करके जो चीजें लिख सकते हो, तो मैं वो भी आपको, मुझे प्लीज बता देना, मैं वो भी आपको गाइड कर दूंगी, ठीक है। इसके बाद है, आपने शुरू किया, अब आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ इसकी लैंग्वेज, आपके लेटर की लैंग्वेज क्या थी।
आपने क्या करना है, उनको कहना है कि हमसे चीजें खरीदो. इट वॉज अ सेल्स मैसेज. इट शुड बी वेरी परसुएसिव, कन्विंसिंग. तो आपने सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट किया ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ न्यू बिल्डिंग प्रोजेक्ट बाय योर कंपनी इन लाहौर एंड इस्लामाबाद. फिर अपना बताया, ज़ेनिथ प्रॉपर्टी डेवलपर्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ सिंबल ऑफ हाईवे हाई उनको बताया कि हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन से आप मशहूर हैं. यू हैव अमेजिंगली रीडिफाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न लिविंग बाय कंस्ट्रक्टिंग न्यू मार्वलस बिल्डिंग्स एंड डेवलपिंग हाउसेस. यानी रहने वाले घर, आपने घरों को, बिल्डिंग्स को एक नया आइडिया दिया है, नया कॉन्सेप्ट दिया है कि इस तरह लोगों को रहना चाहिए. उसके बाद आप अगला अपना अपना बयान कर रहे हैं, एज स्टील प्रोडक्ट्स आर वन ऑफ योर मेजर नीड्स. तो हम स्टील प्रोडक्ट्स जो हैं बेच रहे हैं, हम ISO सर्टिफाइड है. आपको ये सारा करने का पता क्या मतलब था? इनमें से कुछ चीजें आप उठाकर हमेशा के लिए अपनी पॉकेट में रखें. जैसे ISO सर्टिफाइड है, या हम सोल मैन्युफैक्चरर ऑफ प्योर स्टील प्रोडक्ट्स हैं, या सोल मैन्युफैक्चरर ऑफ समथिंग है, हम अकेले यहाँ पर करते हैं, या लीडिंग ब्रांड है, कुछ ऐसे लफ्ज हैं वो आप सीख. ठीक हो गया. ऑफर बेस्ट रेट आपने पढ़ा इसके अंदर दिया. हमारी प्रोडक्ट रेजिस्टेंट जो है उसको करती हैं, रेजिस्ट करती हैं डिजास्टर्स को. नेचुरल डिजास्टर्स क्या होते हैं जो इस सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है, जैसे बहुत हवा चलना, पानी का आ जाना. जैसे फॉर इंस्टेंस खुदा ना खास्ता से कराची में इतना पानी, वहां लोगों का पता नहीं इस वक्त वो ड्रेन हो गया है कि नहीं, लोगों की कितनी बिल्डिंग को या फर्नीचर्स और सब चीजों को नुकसान पहुंचा. तो ये जो चीजें हैं आपने उनको बताया है कि ये बहुत बारिशें हो जाए या बहुत ज्यादा पानी आ जाए तो वो उस पर करते हैं. इसके अलावा वो बता रहे हैं वी ऑल्सो हैव ऑनलाइन सेल पोर्टल. ये चीजें कुछ सीख लो, ये जनरल चीजें हैं, आप समझ रहे हैं. ये तो आप कोई भी चीज बेच रहे होंगे, आप लिख सकते हैं कि हमारे पास ऑनलाइन सेल पोर्टल है, आप वहां पे ऑर्डर करें प्लीज और हम आपको वो देंगे. आप देख समझ रहे हैं मेरी बात को. आपको मैं इसलिए यहाँ से रिमाइंडर एक सॉर्ट ऑफ है यहाँ पर आज, जो चीजें जनरल हैं, जो चीजें हमेशा आपके काम आ सकती हैं, उसको आप नोट कर लो. वो आपके पेपर में काम आएंगी. वहां पर सोचना, लिखना, मिटाना, काटना या इरेज, यानी आप जब टाइप कर रहे होंगे बार बार उसको डिलीट करना, आई मीन इट्स नॉट पॉसिबल, यू विल वेस्ट योर टाइम. उसके बाद है वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस रिलेशन विद द कंपनी. वी होप दैट यू विल consider CSML for purchase of any type of steel products. Quick response shall be appreciated. अब आपने क्विक रिस्पॉन्स शैल बी एप्रिशिएटेड, आप इसको कई जगह पे यूज कर सकते हो. ठीक हो गया ना. तो मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि आपने अपनी फाइलें बना लो, अपने कंप्यूटर में रखो फाइलें, उसमें जो जो चीजें आपने डालनी है उसको हाईलाइट कर लो. हाईलाइट कर लो और कहो कि ये मैंने रिवाइज करना है पेपर से पहले, मैंने इनको यूज करना है. और जब आपको कोई काम दिया जाए, प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तो ओपन दैट फाइल, कॉपी फ्रॉम देयर, कॉपी कर लो. बार बार कॉपी 2 3 4 दफा करोगे तो लिखना आ जाएगा तुम्हें. तो ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ, डू इट प्लीज. तो अभी ये चीजें जो है बहुत जरूरी होती हैं कि आप इसको साथ साथ रखते जाओ वरना मुश्किल हो जाएगा. योर सिंसियरली सिग्नेचर, ABC नेम नहीं नाम दिया था, डायरेक्टर मार्केटिंग हो, ENC कैटलॉग, मैंने एनक्लोजर. अब आपने यहाँ पे अगर नोटिस, कुछ लोग बहुत माइन्यूटली, अच्छा आप लोगों में से कुछ लोगों ने जो मुझे व्हाट्सएप पिक्चर्स भेजी थी उन्होंने यहाँ पे गलती की हुई है. आपने योर्स में एस की अपॉस्ट्रोफी कुछ लोगों ने लगाई थी, प्लीज. अब और दूसरा ये कि प्लीज यहीं से करेक्ट आप कर सकते हैं. मैं अक्सर आपका इग्नोर भी हो सकता है कि मैं ना देख सकूं, तो आप जो है यहीं से अपने आप को करेक्ट करें. ठीक है. एक दो बच्चों लोगों ने जो भेजा था उसकी बात करी शुरू में. तो यहाँ पर आपको कॉमा लगेगा जरूर, ठीक है, ये ध्यान कीजिएगा. और जब आप प्लॉट नंबर लिखते हो ना ऊपर, जैसे आपने 65 कुछ रोड का नाम, जैसे मॉल रोड लिखो, 65 के साथ हाइफन लगाया करो, कॉमा मत लगाया करो. आप लोग कॉमा भी लगा देते हो. तो ये चीज जरा मैंने आपको क्लियर बताई थी. अब इसी का लेटर नंबर 2 आता है और यहाँ पे we cordially appreciate your devoted efforts to enhance the infrastructure of the country. आपने कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर दिया है. we proudly inform करते हैं कि हम जो है एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ हैं, यानी उनको तारीफ कर दी और अपनी बीच में कहानी शुरू कर दी. तो आप अपनी ड्यूरेबिलिटी के लिए आप चीजें बनाते हो और यहाँ पर बताया गया है कि हम बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं जिसमें हम स्टील की चीजें, एलॉय चीजें बनाते हैं और इस तरह के टी बार्स, गर्डर्स, ये उसने उसमें भी बताया हुआ है. आप कुछ खुद से भी ऐड कर सकते हो, जो गिवन है वो डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हो.
और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आपकी क्वालिटी जो है बहुत है और आपको अगर लेंगे 25% रेट डिस्काउंट मिलेगा इतने। इस पे तो इस वक्त तो 100,000 लिखा हुआ ना, ये बहुत कम अमाउंट है, थोड़ी ज्यादा अमाउंट होनी चाहिए, आजकल 100,000 तो कुछ भी नहीं होता। तो ये यहाँ पर आपने इसको देखा, इसका स्टाइल था, ये दूसरा आप समझ लें स्टाइल है। और तीसरे स्टाइल में यहाँ पे एक सब्जेक्ट लाइन है, ऊपर फॉर्मेट लिखा, डियर मिस्टर नेम जो भी था आपने लिखा, रिक्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशंस, ये क्या है, सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन में दो ऑप्शंस हैं, या तो आप यहाँ पर वर्ड सब्जेक्ट लगा सकते हो, देखिए आप मेरे साथ मुझे देखते रहिए, मैं आपको बताती हूँ। या तो आपने सब्जेक्ट लफ्ज लिखा और ऐसे लिख दिया, रिक्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशन। जब आप सब्जेक्ट लाइन लगाओगे, आप कहते हैं मैं लगाना चाहता हूं, चाहती हूं, करें। एक चीज याद रखिएगा, सब्जेक्ट लाइन का तरीका है सब्जेक्ट कोलन, हर लफ्ज का स्टार्ट कैपिटल, और छोटी सी बनाने की कोशिश किया करें, बहुत बड़ी बड़ी नहीं। हर लफ्ज का स्टार्ट कैपिटल, देखा आपने, हर लफ्ज कैपिटल है ना। जो लॉन्ग टर्म है वो एक ही लफ्ज है क्योंकि वो हाइफनेटेड है, तो आप इस तरह करेंगे। दूसरी सूरत क्या है, आप इसको उठाइए, आप सिलेक्ट किए सेंटर, आपने सेंटर कर दिया, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, आपने यूं कर दिया। तीसरी सूरत हाल ये हो सकती है कि आप सेंटर कर दें बेशक, और आप यहाँ पे से सब्जेक्ट का वर्ड निकाल दें, तब भी ठीक है। लेकिन याद रखिएगा टाइप करते वक्त आपने यहां से, देखिए आप मेरा कर्सर नीचे आता है, आपने क्या करना है, आपने एक प्रेस करनी है बार, और ऐसे ही प्रेस करना है, आपकी स्पेस होनी चाहिए, यानी आपने एक स्पेस छोड़नी। और अगर आप भूल भी जाएंगे तो मेरा निछाल एग्जामिनर आपके मार्क्स काटने लगा है, इट्स ओके। इस तरह करना, 3-4 तरीके आपको मैंने सब्जेक्ट लाइन के बताए, लेकिन तब लिखना या तो डिमांड होगी कि लिखो, आपको सवाल में होगा, या फिर आप समझते हैं कि मेरा क्वेश्चन बहुत बेहतर हो जाएगा तो आप लिखिए। इसके बाद यहाँ पर वी आर मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टील प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग, ये हम बेचते हैं, कंसिडरिंग दैट जेनिथ जो है डेवलपर undertaking construction of high-rise building project, we would like to draw your attention to the benefits of purchasing our steel products. ये वाला स्टार्ट भी बहुत ही खूबसूरत एंड टू द पॉइंट है। हम ये चीजें बेचते हैं, हम कंसिडर कर रहे हैं कि आप बहुत काम कर रहे हैं, तो हम आपकी अटेंशन लेना चाहेंगे कि आप हमसे परचेज करें। अगर ये याद कर लो तो ये भी आपके सेल्स लेटर में नाम बदलकर इस्तेमाल हो जाएगा, चीजें बदलकर इस्तेमाल हो जाएगा। इसके बाद वी आर रिनाउंड फॉर सप्लाइंग क्वालिटी स्टील प्रोडक्ट्स है, हमारी स्टील प्रोडक्ट इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन वही ISO सर्टिफाइड है, आपने पीछे भी पढ़ा है, और हम इंटरनेशनल क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारे डिफेक्ट रेट जो है वो बिल्कुल लो है, दूसरी कंपनी से मुतालिक हमारे प्राइस बहुत कंपेटिटिव हैं, ये सारा कहा। उसके बाद आप कहते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू अ पॉजिटिव रिस्पांस एंड होप टू एस्टैब्लिश एमिएबल फ्रेंडली रिलेशन, बिजनेस रिलेशन। और यहाँ पर एक चीज मिसिंग है कि आपने यहाँ पर ना ब्रोशर कहा हम आपको भेजते हैं, ना कैटलॉग भेजी, आपने कुछ ऐसा नहीं कहा, आपको जरूर देना चाहिए ताकि आपका एक लेटर कंप्लीट हो जाए। तो इसके बाद बाकी चीजें मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रही, आपको गुड ओपनिंग्स भेजी थी, ये आपको कहीं ना कहीं काम आ सकती हैं। गुड कंप्लेन में क्या कर सकते हो, इसकी क्लोजिंग कैसे कर सकते हो, ये सारे आपको क्लोजिंग एंड जो है स्टार्ट भेजें, वी लुक फॉरवर्ड हियरिंग फ्रॉम यू, इस तरह की चीजें, इसको आप अच्छी तरह याद कर लो ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, आप मेरी बात समझ गए ना। तो अब हमने जो आज का काम है एजेंडा, उस पर आते हैं जी। आज का एजेंडा में हम क्या करने लगे हैं कि आपके पास एक सिनेरियो है, गौर कीजिए क्या है। नेशनल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इससे क्या साबित होगा, हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का मतलब है घर के लिए लोन देती है। ये ICMA के बहुत पास पेपर्स में से मैंने उठाया है, ठीक हो गया। नेशनल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड प्रोवाइड्स हाउस लोन्स टू जनरल पब्लिक। और ये मैं आपको बताऊं, आप परेशान मत होइएगा, जो काम आपको दिया जा रहा है मेरे साथ साथ करो, आपको इतने ज्यादा सैंपल लेटर्स मिल जाएंगे कि आपकी सोच होगी कि मैं पढ़ भी पाऊं कि नहीं, लेकिन मैं आपको इतने ही दूंगी, गाइड करूंगी जितने आप पढ़ें और उसको समझ लें। ठीक है, जो आपको यहाँ नहीं मिले वो सेपरेट नोट्स की शक्ल में भी मिलेंगे, और आपको जो नोट्स थ्योरी के लिए आपने MCQs के लिए पढ़ने हैं
आपको उसमें भी मैं उसको यानी उसमें तो सिर्फ आपको थ्योरी बताऊंगी, गाइड करूंगी, और जो आपको लेटर्स होंगे उसके अलग से एक आपको सेट मिल जाएगा। और फिर मैं आपको अगले वीक में ही, इट्स टू अर्ली टू टेल एवरीथिंग, अगले वीक में जब हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे उससे अगले वीक में दोबारा हम लेटर्स पे आएंगे, उसमें आपको कुछ चीजें गाइड और कर दूंगी और साथ हम सर्कुलर और मेमोरेंडम बनाना सीख लेंगे। इसके अलावा भी आपको जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि मीटिंग का आपको एजेंडा बनाना आ जाए, आपने मीटिंग हो गई है उसके अंदर आपको मिनट्स बनाने आ जाए, वो मैं आपको गाइड करूंगी, ठीक है। लाइकली चांसेस हैं कि वो नहीं आते, लेकिन फिर भी वो बहुत आसान होते हैं, उनको एक दफा आपने उनकी चंद हेडिंग्स को याद कर लो, यू कैन डू दैट, और वो बहुत ज्यादा आसान होते हैं एज कम्पेयर टू लेटर्स, क्योंकि वो गिवन होते हैं, आपने बस उस एक फॉर्मेट का रट्टा लगाया होता है, उसके अंदर आप चीजें डाल देते हो। वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट, ये जो कमिंग वीक है उसमें नहीं, उससे नेक्स्ट वीक में आपको कराऊंगी। तो आप जो हम मुझे यानी देखिएगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। अच्छा जी, नेशनल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड प्रोवाइड्स हाउस लोन्स देती है टू जनरल पब्लिक, आम लोगों को, आपको, मुझे, सबको। द लोन एप्लीकेशन ऑफ मिस्टर शाहिद खान डज नॉट मीट द अप्रूवल क्राइटेरिया एंड कॉन्सिक्वेंटली, यानी आप, सिचुएशन ये है कि इस कंपनी ने एक एप्लीकेशन रिसीव की शाहिद खान से जो अप्रूवल क्राइटेरिया को मीट नहीं की, एंड कॉन्सिक्वेंटली मीन रिजल्ट के तौर पर द क्रेडिट कमेटी ऑफ द कंपनी, अब ये जाहिर बात है क्रेडिट कमेटी भी तो होगी ना जो कि क्या करती है, लोन देती है ना, वो अप्रूव करती है, ऑफ द कंपनी हैज नॉट अप्रूव्ड हिज लोन एप्लीकेशन, उसने लोन एप्लीकेशन नहीं रिसीव उसकी अप्रूव की। एज अ मैनेजर हाउसिंग लोन डिपार्टमेंट, आप मैनेजर हैं हाउसिंग लोन डिपार्टमेंट के, राइट अ लेटर टू मिस्टर खान मीन शाहिद खान, informing him about the decision of the credit committee together with the reason, assume any, आगे लिखा है जी, possible reasons for rejection of his loan। इससे पहले कि हम खत को पढ़े, आंसर पढ़े, आप खुद चीजें सोच ले। जब भी कोई कमेटी रिजेक्ट करती है या आप किसी को अप्लाई करते हैं लोन के लिए, तो आपको क्या चाहिए होता है, आपका सॉलिड बैकग्राउंड होना चाहिए। बाहर के कंट्रीज में आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होती है, यहाँ पर भी है, लेकिन बाहर के मुल्कों में तो बहुत ज्यादा है ना। जब आपके क्रेडिट कार्ड्स बहुत चले हुए होते हैं तो आपकी वर्थ बढ़ती जाती है, ठीक है, आप बहुत सी चीजें क्रेडिट पे लेते हैं, और वहां तो सिस्टम ही ऐसा है कि वहां पे एक दफा लोग फंस जाते हैं, स्टूडेंट्स बेचारे जो लोन ले लेके पढ़ते हैं, फिर सारी उम्र उनकी लोन देते ही गुजर जाती है, ये एक सिस्टम है वहां का। तो देखा जाए तो अगर हम आप कहें ना कि नेगेटिव जो चीजें होती हैं, जो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं चीजों के, इसमें बहुत ही बुरी चीज है ये, बहुत ही, अव्वल तो या तो बहुत ही कोई आपका जबरदस्त जॉब्स पे आप लग जाते हैं, आप थोड़ी ही देर में सारा रिटर्न कर देते हो, अदरवाइज वो इंटरेस्ट 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 और वो करके पता नहीं क्या से क्या प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो अब यहाँ पर लोन एप्लीकेशन के लिए आपको कोई रेफरेंस चाहिए होता है, आपकी क्या क्रेडिट हिस्ट्री हो, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस हो, क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब है क्रेडिट पर चीजें लेने के आप काबिल हो, ठीक है, ये सारी चीजें हमें देखनी है। अब देखें कि आपके पास क्या पॉइंट्स हैं। आपने रिजेक्शन लेटर लिखना है, ये कौन सा लेटर है, बैड न्यूज, ठीक है, बैड न्यूज लेटर है, लेकिन इसमें अगर आप प्यारा सा बफर बना देंगे तो अगला बंदा जो पढ़ने वाला है वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, वो कहता है कि मुझे तो शायद देने लगा है, उधार देने लगा है, लोन देने लगा है। लेकिन देखिए बहुत ही आप कहते हैं ना टैक्टिक्स के साथ इसको हैंडल हम करते हैं। अब आप देखिए कि इसका सोल्यूशन क्या है, और कीजिएगा, आप अपने आप को शाहिद खान समझ के खत जब पढ़े लिखेंगे तो फिर आप अच्छा खत लिखेंगे जी। यहाँ पर जो एड्रेसेस है ना, वो आप वही लिखिए जो मैंने सिखाए। यहाँ पर उसने कोई एड्रेस नहीं दिया, मैंने अपने पास से ही नेशनल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड लिखा, इधर आप NHFL लोगो लगा लो। जो मैंने फॉर्मेट पे चीजें सिखा दी मैं बार बार नहीं बताऊंगी, अब आपने वही लगानी है। हाँ, उसमें कुछ जैसे थोड़ी बहुत आपको आइडिया देने के लिए मैंने यहाँ लिखा 24A लेक रोड, कॉमा मैग्निफिसेंट एरिया, कॉमा सम सिटी, पाकिस्तान में कहीं नहीं है। इससे किसी भी शहर, किसी इलाके की रिकॉग्निशन नहीं हो रही, इसलिए ये एड्रेस चल सकता है, लगा लो। जो आपको मैंने सिखाया वो लगा लो, आपकी मर्जी, ठीक है। आप कोई नाम ऐसा दे दे जिसमें कि आइडेंटिटी नहीं होती, आप कर सकते। फोन सिखाया आपको लिखना, ईमेल सिखा दी, वेबसाइट लिखा दी, वही लिखोगे, ठीक हो गया।
आपको डेट लिखा दी, आपको रेफरेंस बता दिया, वो लिखो ये लिखो। मैं हर दफा कोई ना कोई चेंज भी कर देती हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आप मैंने इमेजिन देखो ABC/123-06, ये क्या होता है मुझे नहीं पता, ठीक है, हमने बना दिया। हर दफा आपने डबल क्लिक किया, एक यानी आपने इंफॉर्मेशन दे दी, अगली लाइन पे आ गए, फिर अगली अगली लाइन पे यानी प्रेस किया 2 दफा आपने। डियर अहमद खान, यहाँ पर सॉरी मिस्टर अहमद खान है, या मेरे ख्याल में शाहिद खान था, मिस्टर शाहिद खान थे ये, जस्ट लेट मी चेक। जी हाँ, मिस्टर शाहिद खान है, ठीक है। हम इसको यहाँ पे नाम को चेंज कर देते हैं, मिस्टर शाहिद खान है ये। ठीक हो गया। हाउस नंबर 20, जाहिर बात है अगर उसने आपको खत लिखा है ना, तो वो अपने घर से लिख रहा होगा ना, उसने घर के लिए लोन लेना है, वो कहीं हो सकता है रेंट पे रह रहा हो, किसी अपार्टमेंट में रह रहा हो, लेकिन मैंने अंदाजन लिखा मिस्टर शाहिद खान, हाउस नंबर 20, कॉमा स्ट्रीट 12 या स्ट्रीट नंबर 12 कर लो, सम रेजिडेंशियल एरिया, सम सिटी। अब आपको ये मेरी बात समझ में आई है ना? हालात के मुताबिक चीजें सीखो। अगर वो घर में है तो उसको ऑफिस क्या होगा, ऑफिस, हमें ऑफिस का डेजिग्नेशन नहीं चाहिए, वो एक आम जनरल पब्लिक है जिसने आपको खत लिखा है। तो ये आपको मैंने जानबूझ के ये सिचुएशन निकाली ताकि मैं आपको बता सकूं, जब एक कंपनी किसी इंडिविजुअल को लिखती है, नॉट ऑन द बिहाफ ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन, और हर ऑर्गेनाइजेशन आप इस तरह खत लिखते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई बात की? आपने अगर नोट करना है, ये आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, तो आप इसको फॉलो करेंगे कि इस तरह से आपने जो है लिखना है। आपने हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, सम रेजिडेंशियल एरिया, बीच में कॉमा, हर लफ्ज कैपिटल, सम सिटी, खत्म। अब आपने डियर मिस्टर खान लिखा रादर देन शाहिद खान, डियर मिस्टर खान, क्योंकि हम फॉर्मल खत लिख रहे हैं। अब देखिए स्टार्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर सबमिटिंग योर लोन एप्लीकेशन एंड शोइंग ट्रस्ट इन आवर इंस्टीट्यूशन। ठीक हो गया। बट वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर लोन एप्लीकेशन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर मैं सारी ही कहानी, अगर आप समझते हैं कि नहीं मुझे नहीं लिखना पहली लाइन में, ना लिखें, आप सिर्फ ये कह लें कि सबमिट किया लोन एप्लीकेशन को, और हमारी कंपनी जो है वो फैसिलिटेट करती है बहुत जनरल पब्लिक को, जो ऊपर लिखा था आपके सिनेरियो में, वहां से थोड़ा सा लिख लो। आपने कर दिया, फुल स्टॉप। लेकिन पूरी कॉपी नहीं करनी होती, सिनेरियो में से थोड़े से लफ्ज ले सकते हो आप। नेक्स्ट पैराग्राफ में कह दो कि वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू कि आपका जो है लोन एप्लीकेशन नहीं हुई। आपके पास सारी चॉइसेस है, ये कंपल्सरी नहीं है, ये मैंने आपको ऑप्शंस दी हैं। हत्ता कि जो मैंने 3 ऑप्शन दिए हैं पिछले वाले सिनेरियो पर, जो सीमेंट वाली कंपनी थी, मेरा सिर्फ आपको आइडिया था। अगर आपका फर्क है दैट्स ओके, आप उससे फर्क लिख सकते हैं। यहाँ पर उसने ये जो खत है हमारा, इसमें पहले ही कह दिया कि रिग्रेट करते हैं, ना करें। आप अगले पैराग्राफ से स्टार्ट कर लो, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, या अनफॉर्चुनेटली से शुरू कर सकते हो अगला पैरा, लेकिन शुरू में कहानी बुरी ना हो। उसके बाद है आवर क्रेडिट। और एक और बात याद रखिएगा, ज्यादातर बैड न्यूज जो मैसेजेस होते हैं ना, उसमें सब्जेक्ट लाइन मत दिया करो, क्योंकि ऊपर ही खबर आ जाती है ना बुरी, अच्छी खबर तो नहीं लिख सकते हो ना। जैसे आप कह सकते हैं यानी रिग्रेट फॉर नॉट अप्रूविंग योर एप्लीकेशन। ओके, रिग्रेट, तुमने दुख पहले दे दिया है, तो बाद में अब दुखी दोगे मुझे, तो मैं इसके लिए आपने सब्जेक्ट लाइन को नहीं देना होता, मेरा ये आपको मशवरा है। इसके बाद आवर क्रेडिट कमेटी हैज रिजेक्टेड योर लोन एप्लीकेशन। अब देखिएगा कुछ पॉइंट्स। एप्लीकेशन ऑन ग्राउंड, इस पॉइंट पर, दैट इट डज नॉट मीट द अप्रूवल क्राइटेरिया। ये तो आपको सिनेरियो में बताया था, लेकिन आपने लफ्जों को इस्तेमाल तो किया है, लेकिन तरीके से। Though your application, or though mean although your application carries site plan, आपके एप्लीकेशन में साइट प्लान भी था, अप्रूव्ड ड्राइंग भी थी, ट्रांसफर डीड भी थे, सैलरी सर्टिफिकेट भी थी, बट इन मॉर्गेज लेंडिंग, मगर जो आप मॉर्गेज लेंडिंग है, a certain relationship with the between a person's income, fixed monthly expenses and loan amount should exist to make loan advisable. मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये करेक्ट कर दूं कि ये सेंटेंस जो है ये थोड़ा छोटा होना चाहिए था, बहुत लंबा है। ठीक है, आप यहाँ फुल स्टॉप लगा सकते थे कि आपकी एप्लीकेशन, नो डाउट योर एप्लीकेशन कैरीज दिस, ठीक है, या योर एप्लीकेशन कैरीज दिस, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ये चीजें होनी चाहिए। अब चीजें क्या चाहिए उसको, आपको जो मॉर्गेज लेंडिंग मीन, आपको जो उधार हम देंगे,
उसके लिए कुछ रिलेशनशिप किसमें से चाहिए, आपकी इनकम का, आपके मंथली एक्सपेंस फिक्स्ड क्या है आपके, और लोन की अमाउंट क्या है। अगर आपके, मिसाल के तौर पर, आप महीने का एक से 80,000 कमाते हैं और आप कहते हैं कि जी मेरा 70,000 में खर्च कर लेता हूँ, तो 10,000 आपके पास बच रहे हैं। आर यू एबल टू पे बैक आवर मनी? नो, इतने पैसे तुम ले रहे हो, नहीं कर पाओगे, और तुम्हारा बैंक में भी कुछ ऐसा नहीं है, तो आपकी एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट होती। तो आपको पता होगा, बहुत सारे लोगों को इस बात का पता है, जो लोग इवन ऑफिस में भी काम करते हैं, कि आपने कोई ना कोई वर्क दिखानी होती है कुछ चीज को अप्लाई करने की। तो आपकी कोई, जिसे सिक्योरिटी कहते हैं, वो कुछ नहीं आपके पास। सिंस योर इनकम एट प्रेजेंट डज नॉट मीट आवर रिक्वायरमेंट, जैसा कि तुम्हारी इनकम हमारी रिक्वायरमेंट नहीं मीट करती, देयरफॉर वी विश यू टू कीप अवे फ्रॉम एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन। तो मैं आपको विश करता हूँ, आपको मैं यानी आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन से खुद को बचाइए। आप कैसे इंटरेस्ट के साथ हमें पैसे वापस करोगे, ठीक है, और आपका बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब आप ये कहेंगे नहीं नहीं कर सकते हैं, ये क्या हो रहा है, भाई खत ही लिखना है ना तुम लोगों ने, ये तो नहीं कि सचमुच ही दिल पे लेके बैठ जाओगे आप लोग। आपने जो आपके दिमाग में प्रपोज्ड बात आती है लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपने कह दिया कि ये, और एक और बात, आप ये जो पैराग्राफ मैंने लिखा है ना, इसको पॉइंट्स भी दे सकते हो कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, और आपका मीट नहीं करता, हम रिजेक्ट कर सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। उसके बाद हमारा खत्म होता है खत, और उसमें हमने लिखा है, जरा ध्यान से देखिए, एज टाइम गोज ऑन, जैसे ही वक्त गुजरता है, एंड योर इनकम इंक्रीजेस, जैसे ही तुम्हारी इनकम बढ़ती है, वी विल बी देयर टू हेल्प यू बाइंग अ न्यू एंड लार्ज होम, हम तुम्हारी मदद करेंगे एक बड़ा घर खरीदने में। वी सिंसियरली विश टू हेल्प यू रीच योर डिजायर्ड गोल, हम हमेशा कोशिश करते हैं, या हमारी विश है कि तुम अपने गोल्स को अचीव करो। अब ऐसा खत आ गया, मैं क्या करूं, और उनकी कंपनी के रूल हैं, उन्होंने कहा है हमारे रूल हैं, हम कोई तुम्हें पर्सनली तो नहीं डिसलाइक कर रहे, ठीक हो गया। इसके बाद आपने खाली सिंसियरली लिखा है, एस कैपिटल कर दो, योर सिंसियरली करना है, वाई कैपिटल कर दो, और एस छोटा कर दो, और फिर आपने एक स्पेस देनी है यहाँ पर। उसके बाद आप सिग्नेचर लिखते हैं, नेम लिखते हैं, आप मैनेजर हैं, आपका नाम नहीं उसने बताया था, आप यहाँ पे नेम लिख दो, या आप अपने नाम के साथ XYZ नेम लिख दो, ABC नेम लिख दो, जो आपने वहां ऊपर नहीं लिखा नीचे लिख दो, ABC नेम। मैनेजर आप किसके हो, हाउसिंग लोन डिपार्टमेंट के, या हाउसिंग लोन डिपार्टमेंट मैनेजर लिख दो, या मैनेजर कॉमा लगाकर, और फिर आपने इसको साथ ही लिख देना है, ये भी ठीक है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर कंपनी का दोबारा नाम लिखने की जरूरत नहीं होती, वो आपने ऊपर पहले दे दिया। आई थिंक आपको ये मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब आप सारे लोग जो हैं बैठे हुए, आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा, एक गिलास पानी पास पड़ा हुआ है ना, आप एक सिप लें, और अब हम सेकंड बात पे जा रहे हैं। अच्छा जी, अब आप देखिएगा जरा, एक सिचुएशन आ रही है, ये भी ICMA के पास पेपर है, ठीक हो गया, ये मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, ICMA के पास पेपर है। मैनेजमेंट से, मेरा ख्याल है मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा हेल्प कर सकती है, हम ट्राई करेंगे कि जो आपको कंप्यूटर बेस्ड आते हैं, वो बता सकते हैं हमें कि कौन से पास्ट में आए थे, देयर इज नो एनी हार्म इन दैट। आई थिंक I'll try, if I find I'll share with you कि अभी लेटेस्ट क्या है। तो ये जरा पुराने हैं, जब आपको रिटर्न आप पेपर देते थे। अच्छा जी, इसके बाद है यहाँ पर सिचुएशन, देखिए, यू हैड इंपोर्टेड अ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स, तुमने कुछ सामान इंपोर्ट किया, दैट हैज बीन विदहेल्ड जस्ट अनजस्टिफाइबली बाय द कस्टम अथॉरिटीज एट कराची एयरपोर्ट। कराची एयरपोर्ट ने, कस्टम वालों ने, जस्टिफाइबल का मतलब है कि हाँ वो जस्टिफाइड थे, हमारे पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, उन्होंने कर लिया। अनजस्टिफाइबली का मतलब है कि आपके पास डॉक्यूमेंट भी पूरे थे, आप सारा काम करते रहते हो हमेशा, उन्होंने विद होल्ड कर लिया, उसको रोक लिया, कब्जा कर लिया। एज अ रिजल्ट योर ऑर्गेनाइजेशन इज सफरिंग हैविली, तुम्हारा सामान वहीं पड़ा हुआ है, इंपोर्ट किया है, तुम्हें चाहिए, काम करना है उस पर, तुमने, तुम्हारी कंपनी बंद हो रही है, तो तुम्हें कंपनी सफर कर रही है, तुम्हारा काम जो करने वाले लोग हैं वो रुक कर बैठ गए हैं। राइट अ लेटर टू द कलेक्टर कस्टम्स विद अ कॉपी ऑफ FPR की कॉपी लगाओ, रिक्वेस्टिंग हिम टू इंटरवीन, इंटरवीन मीन मुदाखलत करना, इन द मैटर,
कि वो मैटर में अपना यानी अपना कंट्रीब्यूट करें। द लेटर शुड कंटेन ऑल डिटेल्स इंक्लूडिंग रेफरेंस इनिशियल्स। रेफरेंस आपको सिखा दिया लिखना, REF टॉप पर लिखा दिया, ठीक है। सब्जेक्ट लाइन आज सिखाई आपको लिखनी। एनक्लोजर नोटेशन आपको सिखा दी है, लिखा हुआ एनक्लोजर नोटेशन ENC सिखा दिया आपको। एंड कॉपी नोटेशन का आपको जिक्र किया था कि CC यानी कॉपी नोटेशन लिख सकते हो, अभी हम आपको बताते हैं। मैंने आपको वो सिचुएशन बताई है आज जान के ली है जिसमें थोड़ी सी डिविएशन है। आपने अभी तक जो खत देखे उसमें या आपने फॉर्मेट सीखे, एक कंपनी दूसरी कंपनी को लिख रही है, ऐसे किया ना आपने। आज हमने एक सिखाया आपको, एक कंपनी एक आम इंसान को लिख रही है, जनरल पब्लिक। तो क्या करोगे, एड्रेस क्या आएंगे, इसलिए परेशान नहीं होना। और अब तुम लिख रहे हो यहाँ पर कि जब तुम्हारे पास कुछ पता नहीं है क्या है बंदे का नाम, तुम्हारी कंपनी क्या करती है ये भी नहीं बताया उसने। ऐसी सिचुएशन अगर आ जाए, आई विश कि ऐसी सिचुएशन ना आए पेपर में, लेकिन ये पास पेपर का एज इट इज सवाल है। इसने कुछ नहीं मुझे बताया मेरी कंपनी करती क्या है, मैंने क्या गुड्स खरीद लिए हैं, क्या इंपोर्ट किए हैं, नहीं पता मुझे, ठीक है। तो आपने और कितने दिनों से वो पड़ी हुई है ये भी मुझे अज्यूम करना है, आपका एड्रेस अज्यूम करना है, मेरा एड्रेस अज्यूम करना है, सब कुछ करना है। उसके बाद ऑन द टॉप ऑफ इट वो कहता है कि ये सारा कुछ लगाओ, रेफरेंस भी लगाओ, सब्जेक्ट लाइन भी लगाओ, कॉपी नोटेशन भी दो, ये सारा कुछ मुझे कह रहा है। अब मैं क्या करूं, परेशान होने की जरूरत नहीं, हम सब कुछ लगा के दिखाते हैं, हमें आता है। उसके लिए हमने क्या किया, हमने जो खत को देखा तो हमने लोगो लगाया, ABC ऑर्गेनाइजेशन लिखा आगे। ABC ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी ऑर्गेनाइजेशन करती क्या। अगर आप समझते हैं कि मेरी कंपनी जो है कोई चीजें मैन्युफैक्चर करती है, उसके कुछ स्पेयर पार्ट्स रोके हैं तुमने, तो तुम ABC मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड कर दो। समझ आ रही है बात की, ऐसे कर दो। कुछ समझ नहीं आता, ABC ऑर्गेनाइजेशन लिखा और नीचे एज्यूम एड्रेस वही वाला 23 कमर्शियल जोन, सम सिटी सम एरिया, सम सिटी, फोन फैक्स। अब जब फोन फैक्स करोगे वहां, सॉरी फोन और ईमेल करोगे, ईमेल में जो @ जो कर रहे थे वहां पे ABC लिख देना। तुमने ABC कहा है, ABC लिख देना, ठीक हो गया। डेट लिखी। और हाँ, यहाँ पर एक चीज यहाँ पे मिसिंग आ रही है, वो है आपका रेफरेंस। उसने कहा है कि रेफरेंस देना है, तो अभी आपको मैंने सिखाया ना रेफरेंस देना, हमने वही REF लिख लो सिर्फ, आपने आगे कोलन लगा दो और उसके बाद यहाँ पर अभी मैंने आपको ABC लिखा, आपने स्लैश डाल दें और उसके बाद आपने 1 2 3 कर दिया, हाइफन कर दिया, D या B या कुछ भी लिखना है, G लिख दो, या हो गया हमारा, हमने रेफरेंस डाल दिया, ठीक हो गया। और उसी तरह जो खत हमने सीखा बिल्कुल वैसे। उसके बाद मिस्टर नेम उनका है, वो कलेक्टर कस्टम्स है और आगे एड्रेस। जैसे ऑफिस की बिल्डिंग है कोई, तो आप ये किसी प्लाजा में बिल्डिंग है, जैसे कि आपको पिछले किसी खत में मेरी प्लाजा की दिखाई थी ना, उसमें आपने सिंपली आपने लिखना है ऑफिस नंबर 6 और 3rd फ्लोर ABC प्लाजा XYZ रोड सम सिटी, खत्म होगी बात, ठीक है। आपने वैसे अज्यूम कर लेना, एड्रेस बना लिया। उसके बाद अगर फिर भी समझ ना आए तो प्लीज बताना। उसके बाद आपने लाइन छोड़ के डियर सर, अब उसको जरा रिस्पेक्ट से डियर सर कह दो, नाम तो आता नहीं तुम्हें उसका, अगर नहीं लिखना डियर सर, डियर मिस्टर XYZ आप यूं कर दो, डियर मिस्टर नेम, वही वाली चीज। अब उसने कहा है सब्जेक्ट लाइन भी देनी है, कहा है ना उसने, तो हम दे रहे हैं। हमने कहा जी, और आपको पता है यहाँ पे स्पेस छोड़नी है, आपको मैंने अभी समझाया है, आपने स्पेस छोड़नी है। और उसके बाद आपने यहाँ पर जी एक स्पेस ऊपर एक नीचे, आपने रिक्वेस्ट फॉर द रिलीज ऑफ कंसाइनमेंट, और यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर द रिलीज ऑफ कंसाइनमेंट नंबर, आगे नंबर भी लिख सकते हो कोई भी, XYZ ABC LMN कुछ भी लिख दो। तो रिक्वेस्ट फॉर द रिलीज ऑफ कंसाइनमेंट, और उसके बाद आपका खत शुरू हुआ एक लाइन छोड़ के, वी, अब उसने इमेजिन कर लिया वी अ लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी। कुछ लोगों ने इसके जवाब में, कुछ स्टूडेंट खत लिखते थे तो वो अपने आप को, अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो इमेजिन करते हैं जी हम ड्रॉप्स बनाते हैं और उसके लिए एक स्पेशल हमें एक कैटलिस्ट या कोई कोई एंजाइम या कुछ ऐसी चीज हम बाहर से मंगवाते हैं, कोई केमिकल बाहर से मंगवाते हैं, वो आपके पास है और वैसे भी वो ज्यादा देर रहा तो एक्सपायर हो जाएगा, यानी आपने जल्दी डाल दी उनको कि हमारा काम करें वरना हम तबाह हो जाएंगे, एक ये तरीका। दूसरा ये होता है कि आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप जी जो होते हैं आपके जो किचन हाउस होल्ड की चीजें या हाउस होल्ड चीजें बनाते हैं, किचन की जो आपके होते हैं डिफरेंट मशीन्स हैं वो यूज की बनाते हैं,
उसमें आपका कोई छोटे छोटे पीसेज हैं या बोल्ट्स हैं या कुछ ऐसी चीजें जो बाहर से मंगवाते हैं उसकी बगैर असेंबल नहीं कर पाओगे। बिल्कुल आपकी मर्जी है, आप जो चाहते हैं उसके मुताबिक जिसका आपको नॉलेज है वो डालते हैं। यहाँ पे लिखा गया कि लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी हैव बीन ऑफरिंग सर्विसेज इन पाकिस्तान फॉर द लास्ट 20 years owing to the business expansion, क्योंकि हमारा बिजनेस फैल गया, we have to indulge ourselves in import and export activities। चूंकि owing to का मतलब है बिजनेस के एक्सपैंड होने की वजह से हमें इंडल्ज होना पड़ा, हमें शामिल होना पड़ा खुद को इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटीज में। और उसके बाद 1 month ago we had imported some stuff to innovate our अपकमिंग प्रोडक्ट इन द मार्केट। हमने अपनी यानी जो प्रोडक्ट है उसको ज्यादा बेहतर करने के लिए, अपकमिंग उसको करने के लिए काम किया है, यानी उस पर रिसर्च करने के बाद ये भी लिख सकते हो। बट अनफॉर्चुनेटली दैट स्टफ हैविंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रादर हाईली रिकमेंडेड बाय WTO या TQM या कोई भी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से हैज बीन अनजस्टिफाइबली विदहेल्ड बाय द कस्टम अथॉरिटीज एट कराची। ये सारा कुछ नहीं भी आता तो बस लिख दो कि जी वो अनजस्टिफाइबली कराची एयरपोर्ट पे रुक गया है। और कोई भी पुर्जा है आप उसका लिख दो। ओइंग टू अननेसेसरी डिले, यानी उसके डिले की वजह से वी आर सफरिंग टेरिबली, हमें बहुत नुकसान हो रहा है, हम सफर कर रहे हैं। एज वी हैव ऑलरेडी एडवर्टाइज्ड एंड नोटिफाइड टू आवर क्लाइंट्स एंड डीलर्स रिस्पेक्टिवली, यानी हम पहले एडवर्टाइज कर चुके हैं, हम अपने क्लाइंट्स को डीलर्स को बता चुके हैं कि नई प्रोडक्ट फलान टाइम पर आ जाएगी, जैसे लॉन्च करते हो आप। Now this has been a question of our goodwill and prestige। हमारी गुडविल खराब हो जाएगी, हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। In this connection, we have already sent reminders to the concerned authorities as well as our clearing company tried hard to convince the authorities, but they paid no heed, they paid no attention। आप इनके लफ्जों का चेंज कर लें। आप तरीका यही होगा कि आपने उनको भेजा है, आप या रिपीटेडली उनको रिमाइंडर्स भेजे हैं, लेकिन उन्होंने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। वी हैव हाई एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ यू, हमें आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन है, आपको हम कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। प्लीज इंटरवीन इनटू द मैटर, प्लीज आप इस मैटर में आ जाओ पर्सनली एंड हेल्प अस आउट बाय ऑब्जर्विंग स्ट्रिक्ट मैरिट पॉलिसी। और आप अपनी मैरिट पॉलिसी को स्ट्रिक्ट ऑब्जर्व करें, लेकिन हमें आप दे दें। वी हैव आल्सो रिक्वेस्ट यू टू होल्ड द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिले अकाउंटेबल, और यहाँ तक कि जिस बंदे ने हमारा डिले किया है उसको अकाउंटेबल करें, यानी उसको आंसरेबल करें, वो जवाब दे क्यों ऐसा किया है, सो दैट सच प्रॉब्लम मे नॉट अराइज इन फ्यूचर, ताकि आइंदा से ऐसा ना हो। एक बात और आपको बता दूं, देखें इसमें आप बहुत सारी चीजों को चेंज कर सकते हो, आपका दिल चाहे जो भी जितना आपको नॉलेज है उसमें डाल दे, थोड़ा बहुत चेंज कर ले, लेकिन आपको कुछ चीजें जरूर स्टार्ट करनी है। और उसमें यहाँ तक ये भी बता सकते हो कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट पिछले 10 सालों से कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को, हमें कभी प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। और जैसे आजकल आपको पता है कितना लोग जो है, जैसे चाइना का बहुत ज्यादा इंपोर्ट बहुत अरसे से हम कर रहे हैं, हमारे यहाँ डीलर्स हैं जिसका अक्सर आपने सुना होगा कंटेनर्स उनके आते हैं, ठीक है। और अब आपके पास तो गवादर पोर्ट भी हो गई है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको सस्ती चीजें मिल जाएंगी वहां से, क्योंकि उन्होंने अपनी इंडस्ट्री डेवलप कर ली है। हम बेचारे अभी बैठे हुए हैं, हम इंडस्ट्री को देख रहे हैं, तक रहे हैं कि कब ज्यादा डेवलप हो। तो ये सारी बातें जो है आप इसमें लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी, ये नहीं कि सारी ही डाल दो, जितना तुम्हें नॉलेज है भर दो इसके अंदर। तो ये चीजें आपको मैं डिफरेंट सिनेरियो बता रही हूँ कि ये भी आ सकता है। वहां पर आपने चूंकि आपने वहां पे योर्स वहां पे सर लिखा है, तो यहाँ पे योर्स फेथफुली आपको लिखना है, सिग्नेचर ABC नेम लिखा, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपना डेजिग्नेशन भी डाल सकते हो, आप लिख लो, कोई भी डेजिग्नेशन डाल दो। आपने नहीं लिखना तो डेजिग्नेशन डालो। एनक्लोजर्स 2 वो क्या है, कॉपीज हैं जो आपने भेजी, और CC मिस्टर ABC उसका भी डेजिग्नेशन। बस आपने इनक्लोजर भी पूरा कर लिया, देखो नीचे आपने CC भी लिख दिया, उसने कहा है, क्योंकि पता क्या वजह होगी। और देखो योर्स फेथफुली, ध्यान करें, योर्स फेथफुली लिखा है Y कैपिटल F छोटा है। अगर उसने आपको रिक्वायर किया है कि ये चीजें तुम लिखो, तो आप ये सोचें कि वो डेफिनेटली इस पर आपको मार्क्स देगा, लेकिन बहुत कम होता है। लेकिन मैंने आपको, कहते ना एक मुहावरा है, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आपको इन चीजों का देखना है कि भाई आपने क्या प्रिपेयर करना है, और होप फॉर द वर्स्ट है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमारी बात जो है
अभी खत्म होती है। अभी मैं आज इंशाल्लाह थोड़ा ज्यादा टाइम आपको दे दूंगी। मैं देखती हूँ कि अगर जिन लोगों ने कल भी क्वेश्चंस किए थे ना, दे कैन आल्सो पुट देयर क्वेश्चंस जो कल पूछ रहे थे। लेकिन जिन लोगों के मसला है कि उन्होंने अभी तक, फिर उनके नए एडमिशन वाली बात है, तो मैं उनको अभी अभी सेटल करती हूँ, ठीक है, आपसे बात करती हूँ। अब लास्ट चीज मैंने आपको शेयर करनी है वो क्या है, आपको शेयर ये करना है कि जब आपको ये चीजें अगर आप चाहते हैं तो आपको आ जाएंगी। एक आपका होम टास्क मैं दिखा रही हूँ, बाकी आप खुद करें, खुद यानी पढ़ना। एक पढ़ रही हूँ आपके साथ। आपको सिनेरियोज मिलेंगे, मेरी बात समझ रहे हैं? आपको सिनेरियो मिलेंगे 3, उस पर आपने काम करना है। आपने पूरा पूरा खत लिखना है। मंडे को मैं आपके साथ वो खत सिर्फ शेयर करूंगी, आपको दे दूंगी, आप उसको कंपेयर कर लेना, ताकि आपको पता चले कि मैं अच्छा लिख रहा हूँ, लिख रही हूँ कि नहीं। अदरवाइज आपको कभी लिखना नहीं आएगा। मैंने पूरे आपको अगर दे दिए ना कि ये रखो और पढ़ लो, तुम कभी भी नहीं पढ़ पाओगे। ये बात याद रखिए, क्योंकि स्टूडेंट बन के अगर मैं सोचूं तो ऐसा ही होता है अक्सर, ठीक है। तो अब आपको ये सिचुएशन दी जा रही है, ये बहुत ज्यादा मिलती जुलती है अभी जो आपने सिचुएशन की है, ये लेटेस्ट है, लेकिन ये सीए के उसमें से है, और ऐसे ही मिलते जुलते आपको आएंगे। ये बात याद रखिएगा, बहुत ज्यादा एक दूसरे से मिलते होते हैं। अच्छा जी, लिखा है नाइस इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड is engaged in the business of import and supply of refrigerators to distributors in Lahore and Islamabad. आपको बात समझ में आ रही है? लाहौर इस्लामाबाद में आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वहां पर आप सप्लाई करते हैं रेफ्रिजरेटर्स को, आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो। NEL has recently imported a consignment of 300 refrigerators from Hong Kong. ये सिचुएशन है, 300 रेफ्रिजरेटर आया हांगकांग से। द कंसाइनमेंट कहते हैं जो आपके पूरा पैकेज होता है, उसको कहते हैं। द कंसाइनमेंट पैक्ड इन 5 40 feet containers was insured with लालाजार इंश्योरेंस लिमिटेड। बात पहले गौर किया करें, आपकी जो कंटेनर आया इतने बड़ा था, पैकिंग हुई हुई थी उसकी, 540 feet कंटेनर्स आए हैं, जो लालाजार इंश्योरेंस लिमिटेड से क्या हुए में इंश्योर्ड है। आपने इंश्योरेंस जब ली होती है तो आप क्या करते हैं, आप उसका देते हो ना, मंथली सब्सक्रिप्शन उसकी देते हैं, इंस्टॉलमेंट देते हैं। आगे लिखा है एन रूट फॉर पोर्ट कासम, एन रूट भी रास्ते में थे पोर्ट कासम कराची के, टू NEL's वेयर हाउस इन आप पारा इस्लामाबाद। यानी पोर्ट कासिम से चल पड़ी कंटेनर कराची से इस्लामाबाद आते हैं, और आप पारा इस्लामाबाद उसका वेयर हाउस है, वहां आते हैं। वन ऑफ द ट्रक कैरिंग 60 रेफ्रिजरेटर, उनमें से एक ट्रक जिसमें 60 रेफ्रिजरेटर से मेट एन एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हो गया, ड्यू टू विच ऑल द 60 रेफ्रिजरेटर गॉट डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर्स। यानी कोई हल नहीं है, सब टूट गए। बियॉन्ड रिपेयर का मतलब है अब वो रिपेयर नहीं हो सकते, and have to be considered as a total loss. 60 रेफ्रिजरेटर डाउन द ड्रेन, सारे पैसे डूब गए, सब गए, टोटल लॉस आ गया। अब उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, एज मैनेजर इंपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, चीजें खरीदने वाला, इंपोर्ट करने वाला मैनेजर हो तुम। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अ लेटर टू LIL, उनको लिखो लालाजार वालों को, एड प्लॉट नंबर, यानी ये उनका एड्रेस है, 502 डेंसो हॉल कराची उनका जो है उनका एड्रेस है। इन्फॉर्मिंग देम अबाउट द एक्सीडेंट, उनको एक्सीडेंट के बारे में इन्फॉर्म करो, एंड आस्किंग फॉर कंपनसेशन, और उनको कंपनसेशन कहो कि हमें पैसे 60 रेफ्रिजरेटर के पूरे चाहिए। वो तो आपको पता है कि जो चीज इंश्योर्ड होती है उसके आपको पैसे मिलते हैं। द लेटर शुड कंटेन excuse me, the letter should contain all relevant information necessary for establishing a well substantiated claim for compensation, कि आपके पास एक strong claim है, आपके पास ऐसे points हैं जिसे आप claim करेंगे। और आप बात याद रखिएगा, जब हम किसी चीज को क्लेम करते हैं ना, तो हमारी टोन बहुत हार्श नहीं होनी चाहिए, हम बड़े सॉफ्ट तरीके से करेंगे। assume that you are शाहिद अली and NEL is located at इकबाल टाउन लाहौर। अब आप गौर करें, कुछ इनकम्प्लीट आपको मिल रहा है। प्लॉट नंबर 502 डेंसो हॉल, ये तो चलो ठीक है, चलने दो, ठीक है, कराची ये ठीक है। यहाँ पर अगर तुम लिखोगे NEL इकबाल टाउन लाहौर, तुम्हारे ख्याल में खत जा सकता है? नहीं ना जा सकता। तो आपने क्या करना है, इस पे कुछ एज्यूम करना है। और खुदा के लिए वो लोग मुझे जो सुन रहे हैं, अगर वो लाहौर से हैं और वो इकबाल टाउन का इलाका समझते हैं कहाँ है क्या है वहां पर, उनके सही वाले एड्रेसेस ना लिखने बैठ जाना,
और ना ही डेंसो हॉल अगर वाकई कराची में है और वहां पर कोई, या आप पर इस्लामाबाद में कुछ है, तो फॉर गॉड सेक उनका पूरा पूरा कुछ ना लिखना, बस एज्यूम कर लेते हैं। तो आपने एड्रेसेस एज्यूम करने हैं, आपने पूरी कहानी 3 पैराग्राफ में लिखनी है। अगर आपने पॉइंट्स बुलेट्स में देने हैं तो आप दे दीजिएगा। तो आप इस पर एक पूरा क्या करेंगे, खत लिखेंगे। तो आपको अभी 3 सिनेरियो आपको मिलेंगे, एक मैंने आपको पढ़ के बता दिया और 2 आप खुद पढ़ेंगे और उस पर आप काम शुरू कर देंगे। आप उस पर पूरे पूरे खत लिखिए, आराम से टाइप कीजिए, लिखिए। मैं आपको कंपेयर करा दूंगी मंडे को, इंशाल्लाह उसके सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगी और आपको दिखा दूंगी, ठीक है। तो ये बात जो है, मुझे नहीं लगता कि अभी आज मुझे कुछ और आपको बताना है। आई थिंक आज का मेरा टॉपिक जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अभी मैं आपको देख लेती हूँ। हाँ, एक जरूरी बात आपको बता देती हूँ, ये बार बार बताती हूँ, ये फिर आपको शेयर कर लेती हूँ। वो क्या है कि आपने जिन लोगों ने अपने आज उनका नया एडमिशन हुआ या पहली दफा आ गए हैं, ग्रुप में नहीं है, फिर उनके लिए प्लीज सुन लो। जो बॉयज मेल है वो शनावर जो हाईलाइटेड है, इसको मुझे लगता है शनावर इसके बाद अगर इलेक्शन में भी आ जाएगा, मेरे ख्याल है वो कुछ ना कुछ सीट तो ले ही जाओगे शनावर, अगर सुन रहे हो तो। शनावर का ये फोन नंबर है, इस पे कांटेक्ट करें मेल स्टूडेंट्स, और फीमेल स्टूडेंट्स मुझे बता दें, मैं आपको नंबर भेज दूंगी जीआर का। ठीक हो गया, बात समझ में आ गई? आपके मसले हल हो गए हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में इस तरह से आओगे। जिन्होंने मुझे मैसेज भी अगर किया है वो भी, जिन्होंने व्हाट्सएप किया हुआ, या जिन्होंने अभी मुझे यहाँ पे सुन रहे हो। तो ये मेरा आज का जो है बात खत्म हुई है। अब आप, मैं जरा आपके सवाल सुन लूं। आपके 34 क्वेश्चंस हैं, मैं आराम से आज जवाब देती हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है, ठीक है। अच्छा जी, मुस्कान, आपको मेरी बात का जवाब मिल गया। आपने मुझे क्या करना है, आपको पास मेरा नंबर आ गया है, आप मुझे सिर्फ अपना बताएंगी, आप मुझे मैसेज करेंगी तो मैं आपको जीआर का नंबर दे दूंगी। तो अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। यस, फिर वही होता है, जब मैं गुड मॉर्निंग का जवाब देती हूँ तो दोपहर हो चुकी होती है। अच्छा, उसके बाद शनावर कह रही है वॉइस प्रॉब्लम आ रही थी। मुझे अगर मैनेजमेंट के लोग सुन रहे हैं, अगर उनको वॉइस प्रॉब्लम का आ रही हो तो प्लीज मुझे बता दिया करें, ठीक अभी है। तक तो कोई ऐसी आवाज की प्रॉब्लम आई नहीं है। ओके, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। देखिए आप कितने हम अलर्ट हैं, शफीक ने फौरन मुझे बता दिया है, शुक्रिया। आपके एंड पे कोई मसला हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है मिस 21 सितंबर से फिजिकल क्लासेस का आगाज हो रहा है, तो अब इसका जवाब तो अब जो है ना, अगेन मैनेजमेंट देगी, वो आपको बताएंगे किस तरह आपको, किस तरह से उन्होंने सेग्रीगेट करना है सारे सिस्टम को, ठीक है। अच्छा, अब्दुल रहमान भी कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही। महजबीन तबस्सुम, वालेकुम अस्सलाम। उस्मान मोहम्मद खान, आपने कहा था कि मैनेजमेंट से पूछकर फिजिकल क्लास, हाँ जी। मैंने मैनेजमेंट से बात की, अभी आई एम नॉट क्लियर। तो आप अपने जो भी आप जिस स्टेशन के आप हो ना, आप वहां पे जहां एडमिशन के लिए गए थे, या आपने ऑनलाइन भी कराया होगा, आपके पास कोई ना कोई नंबर तो होगा, आप प्लीज उनसे कॉल करें, ठीक है। सीआर जीआर का नंबर मैंने आपको लिख दिया, हसीबुर रहमान, ठीक है। आप सीआर को, शनावर को प्लीज कॉल कीजिए। जीआर का नंबर नहीं दिया, वो मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगी। जी वालेकुम अस्सलाम, सादत हुसैन है। आई गॉट लॉग इन yesterday, ओके। अली मर्दान हिस्बानी, ठीक है। आप प्लीज ग्रुप में आ जाओ एंड टेल दैट बॉय शनावर, he will be sharing with you the books and notes so far you have got, ठीक है। अली मर्दान प्लीज बात कर लें। आईसीएमए से दैट और फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं प्लीज फॉलो कीजिए। मिर्जा अब्दुल रहमान जी, आयशा वालेकुम अस्सलाम। जहां जेब, फिलंथ्रोपिक का मीनिंग बता दें। जहां जेब, फिलंथ्रोपिक कल मैंने आपको बताया था, बहुत ज्यादा लंबा। फिल मीन लव, एंथ्रोपोलॉजी साइंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, फिलंथ्रोप पीपल हु लव ह्यूमैनिटी, हु लव पीपल, ठीक है, उसे फिलंथ्रोप कहते हैं। और उसका जो ऑपोजिट वर्ड होता है ना, उसे कहते हैं मिस एंथ्रोप, MIS, ठीक है। जैसे होता है ना मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी जगह पे आप, जो वर्ड होता है ना मिस या एंटी, या किसी वर्ड के साथ आपने डिस लगा, एबिलिटी डिसेबिलिटी,
ये इसको हम कहते हैं प्रीफिक्स, तो आप प्रीफिक्स लगा लेते हो। अगर आप फिल लगाते हो, फिलैंथ्रोपिक, लव फॉर ह्यूमैनिटी, पीपल हु लव ह्यूमैनिटी। अगर मिस MIS लगा देते हो तो मिसएंथ्रोपिक हो जाता है, यानी यू हेट पीपल, यू वांट टू लिव अलोन। ये मैंने आपको कल बताया था। और फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज होती हैं जो सोशल एक्टिविटीज होती हैं ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस की, जिसमें सड़कों पे आपको नजर आ रहा होगा, अगर कहीं किसी ने अगर लगा दिए हैं वाटर कूलर, लगा दिए हैं, वो नीचे कंपनी का नाम होता है, या किसी ने मस्जिद बनवा दी है, किसी ने स्कूल खुलवा दिया है, फुटपाथ है, या उसके ऊपर शेड बना दिए हैं, तो कंपनी मोल्टी फोम वाले शेड बनाकर ऊपर बना देते हैं, ठीक है, इस तरह करके है। तो दिस इज फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज। हाँ, ये बच्चा कौन है? अच्छा, हाफिजा कह रही है खुदा तुझे, ये मैं जो शेर पढ़ रही थी, मैंने काफी उसके टुकड़े वैसे कर दिए थे। आई एम मच एडमायरर ऑफ अल्लामा इकबाल, लेकिन उर्दू बहुत मुश्किल है उनकी, मुझे समझ तो आती है उनकी। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं है। ओके, ठीक है, थैंक यू। अबरार कह रहे हैं, मैं एक मिनट जी, बच्चों बहुत सारे सवाल पूछते हो। हाउ विल वी राइट बैड न्यूज इन गुड न्यूज? बैड न्यूज इन गुड न्यूज कैसे होती है? मैंने आपको तरीका आज बता दिया ब्रार, आप अगर उसको फॉलो करेंगे आपको सारे खत इंशाल्लाह मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है तुफैल अख्तर, मंडे को आप क्लास लेंगी, फिर मुझे मैनेजमेंट जैसे कहेगी मैं करूंगी, ठीक हो गया, और सारा कुछ अकॉर्डिंगली होगा। तो जैसे ही आपको मैसेज मिल जाएंगे, ठीक है। और शनावर एंड GR, प्लीज आप अलर्ट रहिएगा इस बात के लिए, जैसे ही कुछ आपको खबर होती है तो आप प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक हो गया। हसीबुर रहमान डोंट हैव बुक नोट्स, आप शनावर से को कॉल कर लीजिए, हसीबुर रहमान वो आपको गाइड करता है। इमरान अरशद, हेलो मैम, आई एम न्यू इन क्लास, काइंडली, आपको बता दिया व्हाट्सएप ग्रुप में इमरान एंड अरशद, आप आ जाइए, आपको नंबर दे दिया है। रेफरेंस आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल, कुछ भी लिख दो। आप जिस कंपनी में काम करोगे ना, वो उनका रेफरेंस का एक तरीका होता है। ये इंटरनेशनल ISO पूछ रहे हो ना, ये सर्टिफिकेशन होती है जिसमें कि आप क्वालिटी की सर्टिफिकेशन आप लेते हो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कुछ है। जो चीजें जनरल हैं उसको हाईलाइट कर दें प्लीज। देखो, आपको जो अच्छा लगे, आपको नहीं पता चलता कौन सी चीजें जनरल हैं। अगर आप किसी को कहते हैं कि वेटिंग फॉर आर क्विक रिस्पॉन्स, आपको नहीं पता जनरल है ये बात, कोई बंदा कहीं भी लिख सकता है। ये पर्टिकुलर वो होता है जो किसी खास चीज के लिए, वो उसी कंपनी का जो तरीका है उस पे है। लेकिन जो कुछ चीजें आपको नजर आ रही हैं जो आप समझते हैं हम यूज कर सकते हैं, वो आपने अलग से बना लेनी, ठीक है। लेटर बॉडी को वर्ड टू वर्ड लर्न करना होगा। हसन इरफान, नॉट एट ऑल प्लीज, हर एक फर्क होता है, खत हर फर्क खत होता है, इसको ऐसा मत कीजिए। इसके बाद है व्हाट इज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 20 लेटर मेमो। ये आपको 10 नंबर की दो चीजें आती हैं, दोनों में है, ईच 10 की होती है। अपॉलॉजी लेटर में रिफर्ड एज एडजस्टमेंट लेटर, हाँ हाँ, अपॉलॉजी लेटर भी एडजस्टमेंट ही होती है जिसमें आपने अपोलोजाइज किया है और आप कंपनसेट कर रहे होते हो। सम सिटी जो लिखे हैं, हमने भी सम सिटी लिखा है, बिल्कुल सही है, आप सम सिटी लिखिए, बिल्कुल सही है। जहां से रेफरेंस क्या होता है, मैंने आपको बहुत दफा बताया है, रेफरेंस कुछ भी लिख लेना, आज मैंने आपके सामने लिखा है। रेफरेंस में हर कंपनी का अपना अपना रेफरेंस होता है जिससे कि आप एक लेटर को लोकेट कर सकते हो। एनक्लोजर मैंने आपको करके दिखाया है, जहां से आपको मैंने बोला पूरा एनक्लोजर लफ्ज लिखो, ENC लिखो। एनक्लोजर का मतलब है कि मैं अटैच कर रहा हूं इस खत के साथ और डॉक्यूमेंट्स, उसे एनक्लोजर कहते हैं, या ज्यादा उसको फॉर्मल कहें तो एनक्लोजर नोटेशन कहते हैं, जैसे कि आज आपको खत में मैंने पढ़ाया है। असाइनमेंट आपने, अली मर्दान, आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं, बिल्कुल नहीं करानी, आप खुद लिखेंगे, क्योंकि अभी हम किसी चीज के बारे में क्लियर नहीं है, फिजिकल क्लासेस ऑनलाइन, आप खुद लिखेंगे, मैं इसका सोल्यूशन आपके साथ शेयर कर लूंगी। आपकी प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट है, आप प्रैक्टिस करोगे खुद से। जुबानी लिखने हैं, खत खुद से लिखने हैं, बिल्कुल प्रैक्टिस करके। मंडे के क्लासेस टाइमिंग नहीं पता, मंसूर मुझे नहीं पता,
आपने जितने लेटर दिखाए हैं आज इन सब की प्रैक्टिस करनी है ना? हाँ जी बिल्कुल, इसकी प्रैक्टिस करें और उसको फॉलो करते हुए आपको मैं 3 खत जो है दूंगी, वो खुद लिखना। ओके। लेटर में वर्डिंग मुश्किल लिखनी जरूरी है नहीं, सिंपल वर्डिंग। मैं अभी आप ट्राई करते जाओ, बस मैं आपको मंडे को एक ऐसा दूंगी, नोट्स दूंगी जिसमें बिल्कुल टू दी पॉइंट लेटर्स हैं। जिनको बड़े बड़े लफ्ज नहीं लिखने आते वो उनके लिए एक गुड न्यूज होगी कि वो उसको पढ़ेंगे और वही खत लिख देंगे तो काफी हो जाएगा, आपके पूरे मार्क्स आएंगे तब भी। ठीक है। फॉर्मेट में कहा था कि स्टार्ट में हिरा कह रही हैं, अब्दुर्रहमान, हीरा अब्दुर्रहमान, आपने स्टार्ट में फॉर्मेट में कहा था कि स्टार्ट में हम अपना नेम और डेजिग्नेशन लिखेंगे, लेकिन अब सिर्फ कंपनी। देखिए, आप अपना नाम नहीं लिख सकते ऊपर, सिर्फ कंपनी का नाम लिखते हो। आप समझो कि जैसे एक मिसाल है, आपने किसी ना किसी वक्त अपने स्कूल से, कॉलेज से एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिया होगा, या आपको कोई वहां से एक सर्टिफिकेट लेके आना, से कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, पता नहीं क्या क्या सर्टिफिकेट होती है, या आपने कोई गेम जीती है उसका सर्टिफिकेट आपको मिलता है। उस पर क्या होता है? प्रिंसिपल का नाम टॉप पे होता है? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ आपके स्कूल और कॉलेज का नाम टॉप पे होता है, प्रिंसिपल नीचे अपना नाम लिखता है। बिल्कुल ऐसे करना है। ठीक है, अपना नाम कभी भी टॉप पे नहीं लिखना। इसके बाद है जी, कराची में फिजिकल क्लासेस मंडे से स्टार्ट हैं। ठीक है उस्मान गनी, जैसे आपको कहा गया आप फॉलो कीजिए। लेटर कितनी नंबर का आएगा? 10-10 ईच। मेरे अभी सुनने में यही आया है, 2 चीजें आएंगी 10-10 ईच। एक लेटर, एक मेमो हो गया, लेटर रिपोर्ट हो गई। अभी ना मेमो किया ना सर्कुलर किया, अभी सिर्फ लेटर लिख रहे हो। और जो लिख रहे हो ना, ये बेस बनेगी। आगे पढ़ोगे ना, जो आपका जो आपकी आएगी, मेमो लिखना, सर्कुलर लिखना, लेटर रिपोर्ट लिखना, वो आपकी ये बेस बन जाएगी, तो आप वो लिखना शुरू कर दोगे। आपको बुक जो है अवैस खान बड़ी दफा बता दिया है, बुक्स आपको 2 पीडीएफ मिल चुकी हैं। एक बुक जो है कैप्लन की, उसको साथ पढ़ना शुरू कर दो। वैसी ही बुक स्टॉल पे पड़ी है, वो ले लो बेशक। ठीक है, आपके पास कोई बीकॉम की पुरानी किताबें, वो साथ रेफरेंस के तौर पे पढ़ लो, लेकिन नोट्स बहुत जरूरी है पढ़ने। अपॉलॉजी लेटर मैंने आपको भी बता दिया है, अभी शायद आपने मुझे सुन लिया होगा कि उसे आप एडजस्टमेंट लेटर कह सकते हैं। ओके, चलें ठीक हो गया, और पूरा लेटर क्लियर हो गया है, बट इनक्लोजर क्लियर नहीं हुआ अभी तक। मिर्जा अब्दुर्रहमान, मैंने अभी आपको लिख के दिखाया एनक्लोजर। आखिर में जब आप योर सिंसियरली वगैरह खत्म कर देते हो, वहां पे ईएनसी लिख दो, एनक्लोजर की एब्रीविएशन है। पूरा एनक्लोजर लफ्ज लिखो, और उसमें जो तुमने अटैच किया है नंबर लिख दो उसका, 1 2, बस काफी है, इतने ही काफी एग्जामिनर के लिए। और अगर तुमने लिखना है कि इनवॉइस है या तुम्हारी कोई कॉपी है किसी चीज की, तो वो लिख दो वहां पर, डजंट मेक द डिफरेंस। मोहम्मद मुबशिर सईद कह रहे हैं अक्टूबर से बताया गया क्या क्लासेस का, मुझे नहीं मालूम। सिद्रा, बुक का बता दें, बुक का मैंने फिर बता दिया। आईसीएमए कैप्लन आपके पास बुक है, बिल्कुल सही है, पढ़ लें इसको एज अ रेफरेंस बुक। मंसूर कह रहे हैं पढ़ लीजिए। कंप्लेंट मैसेज पॉजिटिव मैसेजेस में आते हैं? नहीं नहीं, ये नेगेटिव ही होते हैं। कंप्लेंट भी कभी पॉजिटिव हुई है? नेगेटिव मैसेजेस होते हैं, लेकिन आप कंप्लेंट में डायरेक्ट प्लान यूज कर सकते हो कि जी मैंने फलां चीज खरीदी है, टूटी निकली है, इसको प्लीज वापस करें। आप कर सकते हैं। लेकिन आप इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं कि मैं आपका पुराना कस्टमर हूँ, हमेशा चीजें अच्छी ली हैं, नाउ वी आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम, ऐसा भी कर सकते हो। बफर से शुरू कर लो। आपने वर्ड में लिखना है, वर्ड में नहीं हमजा सईद, वर्ड में, एक्सेल में नहीं करना। आपने पैराग्राफ छोटे लिखने हैं, अवैस खान बिल्कुल कर सकते हैं, दरमियान वाला जरा थोड़ा बड़ा कर लें। आईसीएमए के पेपर, सिद्रा राहत, आईसीएमए के ऑनलाइन ये वाले आपके लेवल के होंगे। आईएसओ फुल नेम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ओके। सीसी कार्बन कॉपी की एब्रीविएशन है, यानी आपको कॉपी भेजी है इस पूरे खत की। आप अपनी कंप्यूटर पे टाइप करोगे ना हमजा सईद, तो ज्यादा आपको अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगी, इस तरह आप पेपर में आसानी से कर सकोगे। अगर रजिस्टर पे करोगे
तो फिर आपको लिखना मुश्किल होगा। आई सजेस्ट कि आप कंप्यूटर पे करो। हसन इरफान कह रहे हैं कि आपको लेटर की बहुत टफ है, तो आप बिल्कुल आसान तरीके के लिख लो। अगले वीक में आपको मैं भिजवा दूंगी सिंपल लेटर्स, और आपके पास जो आपके पास आई है किताब जैसे कैप्लन की है, उसमें लेटर्स पढ़ लो। जो भी तुफैल अख्तर क्लासेस के बारे में मुझे नहीं मालूम, आपको बता रही हूँ, एक ही बात बहुत से बच्चों ने लिखी है। खत लिखने के लिए 1 आवर होता है जहां से कह रहे हैं, टाइम का मुझे नहीं पता, मैं कंफर्म कर दूंगी, और आप खुद भी डायरेक्ट कंफर्म कर सकते हो। वर्ड लिमिट खत में स्टैंडर्ड जो होती है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है 150 वर्ड्स, लेकिन आप कम ज्यादा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फातिमा आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको जीआर का नंबर दे दूंगी। वसीउल्ला आपकी इनको भी ऑडियो की प्रॉब्लम हो रही है। जिन लोगों को ऑडियो की प्रॉब्लम हो रही है प्लीज जरा मैनेजमेंट से तो बात करके देखिए कि आपको क्या इशू आ रहा है। वकार अली आप प्लीज शनावर को कॉल कर लें, वो आपको ऐड कर लेंगे। ठीक हो गया? तो ये आपका जीआर नंबर बता दें। जीआर के लिए फरीना, नॉट फातिमा, फरीना। फरीना आप मुझे मैसेज कीजिए, आपके पास स्क्रीन पे नंबर आ रहा है और आपको मैं आगे गाइड करती हूँ। जी बस खत्म हो गया हमारा आज का। मैंने आज सारे सवालों के लिए टाइम काफी बचाया हुआ था। अब आपको 3 मिलेंगे, आपका टास्क है, उसको आप फॉलो करेंगे। स्टार्ट एंडिंग जो आपको अभी तक भेजे हैं उसमें से कुछ उठा लीजिए, आप खत लिखिए जैसे भी आपसे लिखे जाते हैं। फिर आपको जब पूरे नोट्स हो जाएंगे फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है? इवन आप इंटरनेट से भी हेल्प ले सकते हैं इफ यू वांट टू डू। ठीक है? आप इंटरनेट की कोई आपको चलते फिरते कोई ऐसी साइट मिल जाए जहां पे आपको बहुत फायदा हो जाए। बस ये हमारी का बात खत्म हुई। अगले वीक में अगर कोई इसमें चेंजेस आती है स्केड्यूल में, वो आपको मैनेजमेंट इन्फॉर्म कर देगी डेफिनेटली। और मैं भी आपको शनावर एंड जीआर अगेन आपको कह रही हूँ कि प्लीज जरा इन टच रहिएगा। ठीक है? और जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है आप ग्रुप में, जो कि वैलिड इंफॉर्मेशन है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, वो प्लीज उनको शेयर कर लीजिएगा। जी अब नेक्स्ट टाइम के लिए इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।